Garjana. Eka gaganabhidi garjana ne akasa ko hiladia. Rasatala dragana bhagavana ki chika pure paterka dragana parvata sarnhala mem gunja yuthi. Josabaradasta prabhutva aura vanasa ki divaniti. Apane hi bet ko mita deen ke bada. Raksasi janavara ne senkoka nahim kia. Usain soka nahim manaya. Vaha basa muragaya. Usaka rasatala rupa prakartika anugraha ke sathahila rahada. Ora una siki ora lata aya. Rasatala kilina bhagavana se yamila. Jays hi vaha paterka dragana kabal ke kandaharam se guzara. Usana pain pitchkavala mertu hi chori. Jo base antima jivita dragana. Vekavala narasa mem dekha sakat the kyanki unaki vastavakata hi daha rahiti. Kucha bekabu hokara kampa rahida. Hilabi nahim pa rahi the kyanki unak sarira baya se stabdada. Kucha loga gudanam ke bala jira pair. Daya ki bikamamga rahida. Unaki amkam isi vinatiom se bari thim janaka kabi javaba nahim milane valada. Kucha chik. Pagalam ki taraha ro. Apane priyahanam ko akiri. Hatasa alingana mem jakare. Yaha janate huki anaka samaya agaya hai. Fira b. Inamem se kisi ne bi koi farka nahim dala. Rasatala ne nahim suna. Rasatala ko paravaha nahim ti. Rasatala ne daya nahim dikai. Kehi vesa hasrabdiom se jivita rehi bujarga home. Yuva home jo abi apane yavana mem nahimeda. Yaham taka ki apane mata pita ki goda mem dube q baxbi home. Anaka bhagya eka jazada. Rasatala ke panje una sabi taka pahamsi gai. Ora eka karake. Ve mita gai. Kabi goravasali paterka dragana vansa. Eka isi jati jo anati kala se kali a rahiti. Abba nahim rahi. Sayada yaha usak karam ora fali mata ki bayawadati. Ya sayada usaki adma para kisi adersia boja ka barada. Lekina una si ne apani amkam banda karalim. Usain narasanhara nahim roka. Usain kisi ko bi boxain ka adisa nahim dia. Usain basa eyes jari rahane dia. Rasatala ke janavaram ko saba kucha nasta karain dia. Yaha daya nahim ti. Yaha pachataba nahimda. Yaha aparadabada bi nahimda. Ora fira b. Usain apani amkam banda karalim. Usa katha bahuda pahale hi bahuda kuna se range hutha. Jalate hus varga kula se lakara. Saktizali talavara setra taka. Utari divya setra ke kendriya kandaharam taka. Gaher samudra ke diva setra taka ora usak bada way tabahi taka. Kilina rasatala setra taka. Yaham, rasatala ki gahar imem. Una si ne jatain lagam ka vada kiada. Usaki jinati karana muskilada. Ora fira b. Usain apani amkam banda karain ka face alakia. Yaha koi paskatapa ka karya nahimda. Yaha basa karain ke lai baka wa ekamatra kamada. Vanasa ora rajakata ki avazam dur kama hodi gaim kyanki javana ke antima avasesa lupta hogai. Eka bi ajagara nahim baka. Una si ki divya indriom mem. Satya purnada. Hara ajagara nasta hogayada. Surfa sarira se nahim. Balki atma se bi. Akirakara. Usain apani amkam kalam. Usaki nigahim thandi thim. Vavasanya. Jays hi vaha nice utara. Una kandaharam ke bika utara jo kabi paterka dragana vansa ka goravasali gara wakaradada. Usak para eka kabi bhavya amarata ke tutu avasesam ko chugai. Eka mazabuda sanrakana jazain kisi taraha tabahi ko jalada. Bina kisi hikakahata ke age bar hate hu. Vaha usak ujara ola se guzara. Prasina sakti ke avasesa abibi hava mem tyra rahida. Use malabe ke batera. Eka banda ola taka pahumkane mem ziada samaya nahim laga. Eka isa stana jo anajanata avaradham se saraxidada. Saktizali muharam ki parada dara parada. Jo kabi durjaya wakaradida. Lekina abba. Ve arthahina the. Isa prakara ke avaroda svayam ko bane rakane ke li atma ke ansam para nirbarada. Ora abba jabaki una atmam ke svami mara kukta. Yum si ki sakti ke samain yi avaroda hava mem fusapusahata ki taraha fike paragai. Yum si ne apana uterana jari raka. Paterka dragana vansa ke kandaharam ke nice ora gaher uterate hu. Hara kadama ke satha hava bari hoti ya rahi ti. Prasina sakti ke avasesa jays vaha ajnata mem age barha rahada. Gain hot ya rahida. Akirakara. Vaha eka bhavya ola ke samain pahamsiye. Jisaka visala akara use bari laga rahada. Pravesa devara para visala dragana murtiam laji thim. Unaki nakasadera abhivyaktiam rajasi ora gambiradanam hijalaka rahi thim. Yi kavala sajavada nahim thim.
Ve isa pavitra stana ke sanraksaka, sasvata raksaka the. Ola ke bilkala antamem, eka visala pathara ka deravaza usak samain dik idea. Usaki sataha para dragana ki jadila nakasiti, jo pathara mematani gaharai. Se ukari gaiti ki ve lagabaga jivita laga rahida, unaki amkam eka prasina, athaha upastati se kamaka rahi thim. Derives se Nicolane Valley Abba Atani Zabaradasta Tiki Una Siki Samsam Bidimi Laga Rahi Thim. Fira B. Koi Hikakahada Nahim T. Sign Mem Darakate Dila K Satha. Vaha Age Barha Ora Apain Hatham Ko Derives Para Dabat Huapani Sari Sakti Usamem Daladi. Usaki Sakti Pahale Se Hi Divya Simita Setra K Barabarati. Eka Isa Stara Jopaharam Ko Kakanakira Kara Sakata da Ora Akasa Ko Sira Sakata da. Ora Fira B. Daravaza Hila Taka Nahim. Eka Inka B Nahim. Question mark. Use Ahasasa Ki Eka Jalaka Mili. Usi Pala. Una Si Ko Yada Aya. Una Si K Sabda. Hatha Uthad Hai Usaki Nazarem Dindali Paragaim. Usaki Ungaliam Pada Gaim Jays Kuna Ki Eka Bumda Kisi Adersia Sakti Devara H Ki Ora Baha Rahi Ho. Jays Hai Vaha Pathara K Daravahe Para Utara. Eka Gahari. Prasina Gunagunahada Pure Kamari Mem Gunja Yuthi. Visala Daravaja Kampa Yutha. Dragana Ki Nakasi Kamaka Yuthi. Jays Hai Unamem Sakti Ka Sankara Wa. Dur. Mano Apani Virasada K Asali Vahaka Kopahakanate Hu. Daravaza Kalane Laga. Pathara K Farsa Se Ragarada Wa. Jays Hai Vaha Kara Hokara Kula. Una Si Ko and Dara An Ka Nimantranadia. Dahaliza K Usa Para Kucha Adersia Sada. Ora Una Si. Bina Kisi Hikakahada K. Age Barha. Halke. So Samaje Kadamam Se. Una Si Dur Kamari Mem Age Barha. Jays Hai Usain Dahaliza Para Ki. Visala Pathara K Derives Usak Pitch Banda Hogai. Usamaya Se Ashut Akastana Mem Garalia. Lagabaga Turanta Hai. Kamara Jivanta Ho Yutha. Dipaka Tima Uth. Eka Prasina Sunahari Kamaka Bikarate Hujazane Jagaha Ko Rosana Karadia. Lekina Yi Koi Sadarana Dipaka Nahimtha. Hara Eka Dragana Kiaga Se Jala Rahada. Unaki Lapatem Sasvata Thim. Varsam K Batain Se Ashuti. Jina Stambam Ne Unhem Upara Uthayada. Vekavala Pathara Nahimtha. Balki Dragana Ki Rirha Se Gargaitha. Jinamem Se Pratyeka Itihasa Ka Bara Ora Eka Athaha Krura Ikasakti K Avasesalai Huda. Havamem Draconica Abagani Budati. Atani Prabala Ki Manovaha Usaki Tivaka Mem Samadhi Ya Rahi Ho. Usaki Hara Samsa K Satha Vilina Hodi Ya Rahi Ho. Yaha Koi Sadarana Prasina Kaksa Nahimda. Yaha Eka Pavitra Visrama Stalada. Jaham Usa Jadi Ka Sara Samaya de Jo Kabi Astitva K Sikara Parati. Jays Hayuna Si Nathandi. Prasina Hava Mem Samsali. Usaki Nigaha Kaksa K Madhya Mem. Usa Visala Pathara K Tabuta Paratika Gaijo Usak Samain Mamdara Rahada. Vaham Eka Visala Pathara Ka Tabuta Hai. Mam Usamem Visrama Kara Rahi Hayam. Vaham So Rahi Hayam. Una CK Sabda Usak Mana Mem Guma Rahida. Hara Sabda Mem Eka Bara de Jo Usaki Atma Para de Baba Dala Rahada. Usaki Darakanam Teza Hogaim. Usaki Bavanim Zoram Se Hila Rahi Thim. Firabi Usain Kuda Ko Sanyamita Rakane K Limajabarakia. Kadama Dara Kadama. Vaha Age Barhata Gaya. Usak Hara Kadama Para. Kaksa Mem Draconica Abba Umarati Rahi. Prasina. Saktizali. Damagontu. Agara Paterka Dragana Vansa Ka Koi B Sadasia Isa Dersia Ko Dekane K Lai Jibita Hoda. Tavaha Puri Taraha Se Hila Jata. Kyanki Isa Ola Mem. Jatana Age Koi Age Barhata. Usaka Vansa Utana Hai Sutta Hoda. Ora Fira B. Una C. Ekamanava. Bina Kisi Pratiroda K Age Barha Rahada. Hara Kadama K Satha. Kaksa Ne Usvakara Kia. Draconica Abba Ne Usasvakara Karain K Bajaya. Usaka Svagata Kia. Ora Jays Hai Vaha Pathara K Tabuta K Pasa Pahamsie. Use Pada Kala Gaya. Vaha Thika Vahim Dajaham Use Hona Kahida. Basaka. Una Si Ka Dragana Vansa Dragana Jadi K Sabase Pahale Pravaja Se Hai Utpanawada. Isali Kaksa K Batera Ki Sanrakana K Pasa Usage Bahrain Se Rokane Ka Koyu Paya Nahimda. Badim. Draconica Abba. Jo Gusapathiom Ko Pitch Hadan K Lai Thim. Kisi Nabi Usas Vakara Nahim Kia. Yaha Apari Haryada. Usa Samaya. Jaba Una Si Isi Rast Para. Bina Kisi Rukavada Ora Ashut. Kali T. To Azane Dragana Lorda Ora Grainda Eldera. Donam Ko and Dara Taka Hilakara Rakadiada. Isa Pavitra Bhumi Mem Ora Gaharai Taka Kadama Rakane Ki Usaki Kesamada.
Eka isa karanama jokavala sudatama dragana vansa k logam k li hi sambava hi. Kucha isa de jis basamaja nahim peda. Lekina antata, Vaha Akeli Raha Gaiti. Usaki Raksa Karain Vala Koi Nahimda. Ora Isali Unhan Usaka Fayada Uthayada. Lekina Una C. Nahimti. Ora Abba. Purakam Ka Dragana Vansa Abba Nahim Raha. Avakaladursti Se. Una C Usa Visala Pathara K Tabuta K Samain Pahamsie. Usaki. उपस्थिति उसके चारों ओर की हवा को नियंत्रित कर रही थी। अपना हाथ उठाकर उसने धीरे से गहन ऊर्जा का एक प्रवाह छोड़ा, उसे ताबूत के ढक्कन के चारों ओर लपेट दिया। गड़गड़ाहट, एक गहरी प्राचीन कंपन के साथ विशाल पत्थर का ढक्कन ऊपर उठने लगा। जैसे ही वह हिला, उसके भीतर से एक अथाह शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जो आदिम ऊर्जा की ज्वारीय लहर की तरह बह निकली। युनचे स्थिर खड़ा रहा, उस शक्ति को अपने ऊपर बहने दिया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी क्योंकि वह सब कुछ आत्मसात कर रहा था जो कभी छिपा हुआ था। उस समय जब वह पहली बार शेनशी से मिला था, उसकी आभा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। उसकी तारांकन सच्ची साधना, उसका ड्रैकोनिक वंश, उसकी उपस्थिति तारांकन, ये सब सावधानी से नियंत्रित किया गया था, दुनिया से छिपा हुआ था। इसी वजह से वह कभी नहीं जान पाया, कभी समझ नहीं पाया कि वह कौन थी, क्या थी। लेकिन अब उसके सामने प्राचीन शक्ति पूरी तरह से अनियंत्रित होने के कारण अब कोई संदेह नहीं था। वह दिव्य थी, वह वर्तमान दुनिया से परे थी, किसी भी चीज से परे जिसका अस्तित्व होना चाहिए था। युनचे का अपना ड्रैगन वंश, भले ही आदिम नीला ड्रैगन देवता की रीढ़ से उत्पन्न हुआ हो, अंततः उसे ही प्रदान किया गया था। उसका शरीर उसमें ढल गया था, उसमें विलीन हो गया था, और समय के साथ उसका रक्त विकसित हुआ था, जिससे उसे अपना ड्रैकोनिक वंश उत्पन्न करने में मदद मिली। किसी भी जीवित ड्रैगन की तुलना में यह निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ था। लेकिन आदिम नीला ड्रैगन देवता की तुलना में, शेनशी की तुलना में, ये कुछ भी नहीं था। उसकी ड्रैकोनिक आभा उसकी अपनी आभा से कहीं बढ़कर थी। ये प्राचीन, अभिभूत करने वाली और निरपेक्ष थी, एक ऐसा अस्तित्व जिसे युनचे भी अपनी सारी शक्ति के बावजूद अभी सही मायने में समझना शुरू कर पाया था। युनचे धीरे धीरे ऊपर की ओर तैर रहा था। उसकी हरकतें शांत, लगभग श्रद्धापूर्ण थी। जैसे ही वह विशाल पत्थर के ताबूत के पास पहुंचा, ढक्कन पूरी तरह से खुल गया था, जिससे उसके अंदर शांति से लेटी हुई आकृति दिखाई दे रही थी। एक ऐसी आकृति जिसकी वह दिन रात लालसा करता था। एक ऐसी आकृति जिसने उसके सपनों को तोड़ दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए उसने कभी वो अजीबोगरीब, बेतुकी कविता लिखी थी, क्योंकि शब्द उसके पास नहीं थे, क्योंकि उसका दिल उन भावनाओं से उमड़ पड़ा था जिन्हें वह कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया था। एक ऐसी शख्सियत जिसे वह चाहता था कि वह हमेशा के लिए थामे रह सके, उसमें विलीन हो सके, उसके साथ एक हो सके तारांकन, ताकि वह उसे फिर कभी न खोए। शेनशी, उसकी सुंदरता उतनी ही बेदाग, उतनी ही अलौकिक थी जितनी उस दिन थी जब उसने पहली बार उसका असली चेहरा और शरीर देखा था। वह वहीं पड़ी रही, समय से अछूती, मानो वह बस एक गहरी, अंतहीन नींद में सो गई हो। जैसे ही वह धीरे धीरे उस विशाल ताबूत के भीतर उसके बगल में उतरा, उसका शरीर कांप उठा। उसकी सांसें अस्थिर थी, उसका दिल भावनाओं से इतना धड़क रहा था कि वह उन्हें नाम भी नहीं दे पा रहा था। कांपते हाथ से उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उसके नाजुक, चीनी मिट्टी जैसे चेहरे को छू रही थी। वह गर्म थी, गर्म, फिर भी बिल्कुल बेजान। अपने सारे ज्ञान, वर्षों में अर्जित गहन निपुणता, अपनी वर्तमान आत्मिक शक्ति के साथ, यहाँ तक कि स्वप्नदर्शी दिव्य कलाओं को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने के बावजूद, वह उसकी आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहा था। कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। उसकी सांसें अटक गईं, उसकी उंगलियां थोड़ी कस गईं, छोड़ने से इनकार कर रही थी, इस बात के भार को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी कि इसका क्या अर्थ है। और फिर छोटी सी एक आवाज, मृदु, दूर, जानी पहचानी, लीसू, विस्मयादिबोधक चिन्ह, लीसू, तुम जाग गई हो। युनचे की आवाज अविश्वास और आशा के मिश्रण से भरी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में उसकी उपस्थिति को महसूस किया। यह मंद, अस्थिर थी, मानो वह अभी भी अस्तित्व और शून्यता के बीच के अंतराल में विचरण कर रही हो, कभी पास, कभी इतनी दूर कि उसे डर था कि वह हमेशा के लिए चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब तुम पहले टूटकर बाहर आए थे, मैंने महसूस किया था तुम्हारी कुलदेवी की आभा और भी प्रबल हो गई थी, और उसने मुझे ठीक कर दिया था। लीसू की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों ने युनचे के पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया। कुलदेवी की आभा ने उसे ठीक कर दिया। इससे पहले सृष्टि के देवता,
जीवन की देवी लीसू ने युनचे को पहले ही बता दिया था कि उसका ठीक होना सीधे तौर पर उसकी शक्ति से जुड़ा है। वह जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, वह उतनी ही तेजी से ठीक होगी। हालांकि दिव्य गुरु की मध्य अवस्था से दिव्य गुरु की अंतिम अवस्था तक पहुंचने के बावजूद उसकी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। फिर भी अब उसने कुछ बिल्कुल अलग कहा था। उसकी कुलदेवी की आभा और भी प्रबल हो गई थी। अपने सारे अनुभव के बावजूद युनचे भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आभा में कभी कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं किया था, न ही उसने कुलदेवी से जुड़ी किसी भी चीज की सक्रिय रूप से साधना की थी। लेकिन उससे भी ज्यादा लीसू खुद भी हैरान थी। उसने मान लिया था कि वह काफी देर तक गहरी नींद में सोती रहेगी, और फिर भी वह यहाँ थी। युनचे के शरीर से निकलने वाली आभा ने उसकी आत्मा को तेजी से ठीक कर दिया था। उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से उसकी रिकवरी कर दी थी। यह इतना अचानक, इतना अकथनीय था कि उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। युनचे अभी भी अपनी भावनाओं के तूफान में फंसा हुआ था। शुरू में अपनी सफलता के बारे में पूरी तरह भूल गया था, लेकिन अब जब उसका मन स्थिर हो गया था, तो उसने अपनी इंद्रियों को अपने पूरे शरीर पर फैला लिया। उसकी गहन शक्ति निस्संदेह बढ़ गई थी। उसकी साधना काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। फिर भी इसके अलावा उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिव्य सार में कोई बदलाव का स्पष्ट प्रमाण नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये दर्शाता हो कि उसकी कुलदेवी की आभा अचानक प्रबल हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, लीसू की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम समझ सको। उसके शब्दों ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। जो कुछ भी बदला था, वह उसकी वर्तमान समझ से परे था। युनचे ने धीमी सांस छोड़ी, इससे पहले कि उसका ध्यान फिर से सबसे जरूरी चीज पर केंद्रित हो। लीसू, क्या तुम शेनशी की मदद कर सकते हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनकही उत्सुकता का बोझ था। एक पल का सन्नाटा, तभी लीसू की कोमल आवाज लौट आई। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं नहीं कर सकता। यह जवाब युनचे को एक झटके की तरह लगा, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने निराशा को जड़ नहीं पकड़ने दी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लीसू के अगले शब्दों ने उसकी आत्मा में झकझोर दिया। लेकिन अगर तुम अपनी कुलदेवी की दिव्य कला में एक और सफलता हासिल कर लो, मुझे यकीन है कि मैं उसे और उस छोटी सी काष्ठ आत्मा को वापस जिंदा कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे का दिमाग फट गया। उसकी सांस गले में अटक गई। उसका शरीर मानो दैवीय बिजली से स्तब्ध हो गया। उन्हें वापस जिंदा करो। सिर्फ शेनशी ही नहीं, बल्कि लिंग एर भी। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। उसका दिल एक अविश्वसनीय, कच्ची भावना से धड़क रहा था। एक मौका, एक सच्चा मौका, असंभव, शायद सचमुच पहुंच में हो। युनचे की भौहें फड़क उठी, और उसका दिल उसकी छाती के भीतर बेकाबू होकर धड़क रहा था। लीसू के शब्दों ने उसे आशा दी थी, सच्ची, अविश्वसनीय आशा। ये सिर्फ खोखला आश्वासन या अंध आशावाद नहीं था। यह एक सृष्टि देवता का वचन था। अगर उसने कहा कि वह ये कर सकती है, तो वह कर सकती है। शेनशी, लिंग र दोनों वापस आ सकते हैं। तो जल्दी करो और आगे बढ़ो। लीसू की आवाज उसके मन में गूंज रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। फिर भी जैसे जैसे वह बोल रही थी, उसकी उपस्थिति और दूर होती जा रही थी। उसकी आवाज धीमी और कमजोर होती जा रही थी, मानो थकान उसे फिर से जकड़ रही हो। लीसू, युनचे ने उसे पुकारा। उसकी आवाज में तत्परता थी। उसने फिर पुकारा, और फिर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली बात जो उसने जानी, उसकी चेतना बदल गई, और पलक झपकते ही उसने खुद को आकाशीय विष मोती की दुनिया में खड़ा पाया। एक चमकदार, पवित्र श्वेत प्रकाश ने सब कुछ ढंक लिया। उसकी आत्मा को धो डाला, भ्रष्टाचार और अंधकार के सभी निशानों को शुद्ध कर दिया। यह एक अनोखी ऊर्जा थी। ये वही थी। गुरु, देखो, बड़ी सफेद बहन चमक रही है। एक खुशमिजाज, जानी पहचानी आवाज ने उसे उसकी स्तब्धता से बाहर निकाला। होंग र वह दौड़कर उसके पास आए, उसकी आंखें उत्साह से। Kari ho gaim, ora vaha yusa kamakadera kamaka ki ora isara kara rahi ti jo unak samain fali waiti, uera kupakapa usik pitch kali gai, usik bagala mem kari ho gai, usaki baingani amkam santa jijnyasa se bari thim ora vaha bi usa dimi spandita rosani ko de ka rahi ti, li su, vaha thika ho rahi ti. Una si akapala ke lai kupakapa dekata raha, usaka damaga abi bi saba kucha samaja rahada.
Fira, Kucha Darabada, Usain Samsa Chori Orabola. Use. Sayada Apane Lysamaya Kahi. Use Parasana Mata Karo. Usak Sabdam Memaka Isi Nisatata TGs Hongara Bisamaja Gaya. Usain Pitch Hadan Se Pahale. Anaka Se Hai Sahi. Sira Hilaya. Ora Isak Satha Hai. Una Si Bahari Dunia Memlata Aya. Prasina, Damanakari Kaksane Eka Bara Fira Usaka Spagata Kia. Visala Pathara K Tabuta K Pasakari Hokara. Una Si Ne Usamem Bathi Kamosa Mahila Ko Deka. Vaha Mahila Jisaki Raksa Karain Ki Usain Kasama Kai Ti. Vaha Mahila Jis Vaha Pahala Eka Bara Nakama Kara Kukada. Usaka Hatha Tabuta Ki Thandi Sataha Se Chu Gaya. Ora Fira, Dur Se, Fira Bi Adiga Visvasa K Satha, Vaha Bola. Thori Dara Ora Ruko, Sena Si. Main Tumhem Jalda Hai Gara Laamga, Eka Akiri Nazara K Satha, Una Si Hava Mem Yutha, Usaki Gahana Urja Umara Rahi TJs Hai Usain Durse Dakana Bandakia, Booma Mama, Puri Paterka Dragana Parvata Sarnhala Hinsaka Rupa Se Kampa Yuthi Jaba Una Si Puri Takata Se Pada Usaki Aisvarya Raka Avastha, Usaki Gahana Urja Eka Prakanda Tufana Ki Taraha Umari, Ora Jays Hai Usain Apane Hatha Zamana Memguri, Vaikari Way Zamana Para Jatake Mahasusa Hu, Idvitia Sakti Se, Usain Pure Pathara K Tabuta Ko Usak Prasina Visrama Stala Se Kinkalia Ora Uspavitra Bhumi Ki Gaharayam Se Mukta Karadia, Makaber Ki Raksa Karain Valley Sanrakanam Ne Turanta Pratikriya Vyakta Ki, Unaki Lamsamaya Se Niskriya Saraksa Garjana K Satha Jivanta Ho Yuthi. Prasina Ajagara Ki Chikam Ki Guma Kaksa Mem Gunja Yuthi, Anajanata Perhayam K Abasesa Isa Gusapatha Ka Virota Karain Ki Virtha Kazisa Kara Rahida, Fira B, Ve Yus Roka Nahim Sake, Isa Dunia Ki Koi Bi Takata, Nahayatita Ka Koi Bi Abasesa, Una Si Ki Ikasakti Ko Badita Karasaka, Usak Nice Ki Zamana Pada Gai, Ora Tabuta Apani Ninva Se Mukta Hot Malaba Uragaya, Jays Hai Antima Pradirota Kama Wa, Usak Upera Eka Adikalina Gahana Sanduka Prakata Wa, Jisake Devara Usaki Pukara Para Kulagai, Bina Kisi Hikakahada K, Una Si Visala Tabuta Ko Apane Satha Lai Hu, Sanduka Mem. Adikalina Gahana Sanduka K Visala Vistara Ne Usaka Svagata Kia, Usaki Dunia Usaki Amkam K Samain Antahina Rupa Se Fali Waiti, Eka Pala K Lai, Usain Koja, Akirakara, Uspa Hilia, Eka Ashuta, Niskalenka Stana, Fulam Ka Eka Santa, Antahina Maidana, Kurtrima Hava Mem Dur Lahara Rahada, Yaha Santa De, Nirmala, Yaham, Yaha Kabra Jaza Nahim Lagega, Dur Se Nice Uterate Hu, Una Si Ne Visala Tabuta Ko Narama Zamana Para Rakadia, Usaka Bara Zamana Mem Samagaya, Akirakara Balain Se Pahala Usaki Nigahim Pathara Ki Sataha Para Kafi Dara Takatiki Rahim, Mame Abi Tamhari Mam Ko Vipasa Nahim La Sakata, Lekina Mame Tume Svada Karata Hum, Kehi Katana Bisamaya Lage, Vaha Fira Se Kala Fira Jamdi, Usaki Avaza Stirati, Atala Sankalpa Se Bari Way, Eka Vada Jo Nahim Tutega, Dur, Una Si Pasakari Kamosa Akarti Ki Oramura, Eka Isi Akarti Jisaka Sarira Kampa Rahada, Usa Katha Kasakara Bins Hu the Kyanki Vaha Apane Batera Umara Rahi Bari Babanam Se Juja Rahi Ti, Usain Usaki Nazaram Se Mulakata Ki, Usaka Baba Narama Paragaya. Kirpaya Apani Mam Ka Diana Rakana, Ora Kucha Kahane Ko Nahimda, Vaha Mura, Hava Mem Kadama Rakat Hu Jays Hayadikalina Gahana Sanduka Kadavara Usak Pitch Jilamilaya, Eka Kasana Bada, Vaha Adersia Hogaya, Jays Hai Vaha Paterka Dragana Kula Ki Ujari Way, Raktaranjita Bhumi Para Puna Prakatawa, Usaki Aisvarya Raka Abastha Fira Se Umara Parai, Usaki Sakti Svarga Ki Ora Falagai, Antahina Koher Sagara Ki Athaha Dula Ne Usaki Pukara Ka Ataradia, Eka Jivita Prani Ki Taraha, Vaha Age Bari, Apane Rast Mem and Valley Hara Siza Ko Nigalati Way, Pure Setra Ko Apani Gani, Damagontu Upastiti Se Baradia, Vaha Bhumi, Jo Kabi Draganam Ka Aberanyati, Puri Taraha Se Nagala Li Gai, Eka Kabristana Jis Rasatala Ne Hai Nagala Lia, Fira, Eka Kamaka K Satha Lala Rosani, Una Si Ora Athaha Janavara Gayaba Ho Gai, Akirakara, Dunia Ko Eka Bayanaka Sakai Ka Patakala, Ananta. कोहरे का सागर एक ऐसी शक्ति जो अनगिनत युगों से लगभग सीमित रही थी, एक बार फिर फैल गई थी। लेकिन इस बार ये पहले जैसा कुछ भी नहीं था। इस बार इसने पैट्रिक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला को पूरी तरह से निगल लिया था, जो कभी ड्रैगनों की पवित्र भूमि थी, एक ऐसी जगह जो अनादिकाल से अडिग खड़ी थी,
बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। कोई खंडहर नहीं बचा, कोई लाश पीछे नहीं बची, कुछ भी नहीं था, केवल अंतहीन मंथन करता हुआ अथाह कोहरा, लगातार बाहर की ओर रेंगता हुआ, भस्म करता हुआ, नष्ट करता हुआ, मिटता हुआ। और इसके साथ ही पैतृक ड्रैगन वंश भी खत्म हो गया। युनचे अनंत कोहरे के सागर में फिर से प्रकट हुआ। उसका रूप उस घने दमघोटो अथाह गर्त में समा गया था जिसने सब कुछ सोख लिया था, रंग, गर्मी, जीवन ही नहीं। हवा भयावह रूप से शांत थी, एक ऐसे सन्नाटे से भरी हुई जिससे ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। नीरस बेजान धूसर रंग हर दिशा में अंतहीन रूप से फैला हुआ था, एक दमनकारी शून्य जो उसकी आत्मा को दबाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके जैसे व्यक्ति के लिए भी, जो अंतहीन रक्तपात और विनाश में नहाया था, ये जगह एक ऐसा भार ढो रही थी जिसने उसका मन खराब कर दिया। एक साधारण आदेश पर अथाह जानवर हिल गए, उनके विशाल रूप उसे अथाह गर्त में और गहरे ले गए। उनकी खामोश हरकतों ने हवा को मुश्किल से ही हिलाया, और बस यूं ही वे कोहरे में विलीन हो गए। शायद यह उसके चारों ओर के एकरंगी खालीपन के कारण था, या शायद ही कुछ और गहरा था, उसके दिल के भीतर कुछ अशांत। बहरहाल युनचे को अपनी चिड़चिड़ाहट बढ़ती हुई महसूस हुई, सन्नाटा उसके मन को कुतर रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। ये वह जगह नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। उसका चेहरा टिमटिमाया, और अगले ही पल वह आदिकालीन गहन संदूक की दुनिया में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी दिव्य भावना बाहर की ओर फैल गई, और वह उस चीज की तलाश में लग गया जिसे वह पहले से ही जानता था। कुछ ही क्षणों में उसने खुद को शेनशी के ताबूत की ओर खींचा हुआ पाया। उस दृश्य को निहारते हुए उसकी नजर थोड़ी नर्म पड़ गई। उसकी बेटी युनशी विशाल पत्थर के ताबूत के पास चुपचाप बैठी थी, उसके छोटे छोटे हाथ उसकी सतह पर टिके हुए थे, उसका सिर मौन जागरण में झुका हुआ था। कुछ ही दूरी पर ज़िया किंग्युए दूर खड़ी देख रही थी, फिर भी पास आने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। उसकी उपस्थिति एक साए की तरह थी, मौन, स्थायी, हमेशा मौजूद, फिर भी कभी दखल अंदाजी नहीं करती। एक क्षण के लिए युनचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस दृश्य को अपने मन में बसने दिया और खुद को अपने विचारों को समेटने पर मजबूर किया। एक गहरी सांस, नियंत्रण की एक झलक। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली, तो वह मुड़ा और एक अलग दिशा में उड़ गया। शायद इसलिए कि इतने लंबे समय से उसे खाए जा रहे सारे क्रोध, घृणा और अंधकार, जीवन की देवीली सू से निकलने वाली गहन प्रकाश ऊर्जा से शुद्ध हो गए थे। शायद इसलिए कि लंबे समय में पहली बार उसका मन साफ था। लेकिन अब, जैसे ही क्रोध का कोहरा छटा, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। दर्द से नहीं, थकान से नहीं, बल्कि इसलिए कि कुछ गहरा, कुछ कच्चा और बेकाबू उसके भीतर उभर रहा था, कुछ हिस्सा जिसका वह सामना नहीं करना चाहता था। युनचे ने अपने दांत पीसते हुए विचारों को दूर धकेल दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वे गायब होने से इनकार कर रहे थे। शैतान रानी, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि इंसान का स्वभाव बदलना मुश्किल होता है। युनचे की आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, उसके शब्द उसके आसपास के खाली सन्नाटे में बह गए। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने अपनी छाती पकड़ ली, एक सुस्त, घुटन भरा दर्द उसके दिल से फैल रहा था। ये दर्द था किसी शारीरिक घाव से नहीं, बल्कि किसी बहुत, बहुत गहरी चीज से। तुम सही थी, आज वह बहुत आगे निकल गया था। उसने अनगिनत जिंदगियां मार डाली थी, जितनी वह गिन भी नहीं सकता था। और फिर भी, उसके हाथों पर लगा खून उसे परेशान नहीं कर रहा था। क्रूरता थी, इसकी जरूरत नहीं, बल्कि उसने खुद को कितना गिरा दिया था। एक अथाह राक्षस होते हुए भी, ड्रैगन लॉर्ड ने तारांकन भले ही एक क्षण के लिए, तारांकन अपने ही बेटे को मारने के आदेश का विरोध किया था। उस विकृत, भ्रष्ट रूप में भी, उसके अस्तित्व का एक अंश हिचकिचा रहा था। लेकिन युनचे, उसने नहीं किया था। उसकी नफरत पूरी तरह से चरम पर थी। उसका आदेश पूरी तरह से चरम पर था। और पिता ने अपने बेटे को खा लिया था। उसकी वजह से, वह भी एक पिता था। और वह जानता था कि अपने बच्चे को खुद से ज्यादा प्यार करने का क्या मतलब होता है। और इसलिए, वह ये भी जानता था अगर ड्रैगन लॉर्ड की आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है, उसका एक छोटा सा अंश भी रसातल में पड़ा है, तो वह असीम पीड़ा से भर जाएगा। असीम नफरत, उसके लिए। युनचे का शरीर कांप उठा, उसकी उंगलियां मुट्ठियों में कस गईं। मैंने पाप किया है। एक बार फिर, वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मुद्रा झुक गई, उसका सिर नीचे झुक गया। हर चीज का भार उसकी आत्मा पर पड़ रहा था, न सिर्फ आज के वक्त का, बल्कि हर चीज का। जितने भी जीवन उसने लिए थे, जितने भी चुनाव उसने किए थे, सारी नफरत जो उसने झेली थी,
वह जितना गहरे रसातल में डूबता गया, उतना ही वह खुद को खोता गया। लेकिन ईश्वरीय क्षेत्र के जीवित रहने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। उसके अपने शब्द उसकी जुबान पर कड़वे लग रहे थे। वे सच थे। वह जानता था कि वे सच हैं। लेकिन फिर क्यों, यह एक बहाना क्यों लग रहा था? उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आत्मा अस्त व्यस्त थी। उसके विचार आपस में उलझ गए, आपस में लड़ रहे थे। लीसू के शुद्धिकरण की गर्मी ने उसके क्रोध को तो साफ कर दिया था, लेकिन उसे कच्चा छोड़ दिया था। बेपर्दा, उसे पता नहीं था कि वह वहां कितनी देर तक रहा, अपने ही मन के तूफान में खोया हुआ। लेकिन फिर एक गर्माहट, एक जानी पहचानी कोमल गर्माहट ने उसे पीछे से घेर लिया। कोमल बाहों ने उसे गले लगा लिया, उसकी पीठ को दबाया, स्थिर और अविचल। वह एक पल के लिए अकड़ गया। फिर धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल हो गया। उसका तूफान शांत हो गया। और पहली बार, मानो अनंत काल में, युनचे बस वहीं बैठा रहा। लेंस, उसकी आभा, उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, ये सब उसे जकड़ रही थी। उसकी टूटी हुई आत्मा की दरारों से रिस रही थी, अंदर से उसमें घुल रही थी। यह एक ऐसी गर्माहट थी जिसकी उसे जरूरत थी, इसका उसे एहसास ही नहीं था। एक ऐसी गर्माहट जो अजनबी सी लगती थी, फिर भी जानी पहचानी। एक ऐसी गर्माहट जिसने रसातल को उसे पूरी तरह से निगलने नहीं दिया। युनचे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी सांस गहरी और अस्थिर थी और उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। शुक्रिया, किंग्युए। उसकी आवाज धीमी, कर्कश, थकान से भरी थी, जिसका उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसके दिल से था। उसके पीछे खड़ी महिला ने अपना आलिंगन नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। वह एक पल के लिए चुप रही, मानो सोच समझकर अपने शब्द चुन रही हो। फिर उसकी आवाज आई, मृदु, फिर भी स्थिर, एक शांत शक्ति लिए हुए जो उसके अस्तित्व की गहराई तक पहुंच गई। हम पति पत्नी हैं। क्या वाकई धन्यवाद की जरूरत है? ज़िया किंग्युए की नजरें उससे मिली जब वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखें उसकी आंखों में झांक रही थी। वे आंखें जो अब उस युनचे की आंखें नहीं थी जिन्हें वह कभी जानती थी। वे आंखें जिन्होंने बहुत ज्यादा मौत, बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा नुकसान देखा था। वे आंखें जो अंधेरे और रसातल से दागदार हो गई थीं। और फिर भी उस रसातल की गहराई में कुछ अभी भी बचा था। कुछ छिपा हुआ, कुछ जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। एक दर्द जो अब तक दबा हुआ था। एक ऐसा दुख जो इतना गहरा दबा हुआ था कि खुद युनचे ने भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ज़िया किंग्युए ने इसे देखा। उसने इसे साफ देखा, और इसलिए उसने उसे जाने नहीं दिया। वह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने बस उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपना माथा उसकी पीठ पर धीरे से दबाया। उसने उसे यह नहीं बताया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने उसे यह नहीं बताया कि वह कोई राक्षस नहीं है। वह बस वहीं खड़ी रही, चुपचाप, मौजूद, अविचल। क्योंकि इस पल वह समझ गई थी, युनचे को बचाने की जरूरत नहीं थी। उसे बस किसी के रुकने की जरूरत थी। मैं यह नहीं पूछूंगी कि बाहर क्या हुआ, ज़िया किंग्युए ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अनकही समझ का बोझ था। लेकिन अगर तुम थके हुए हो, तो थोड़ा आराम कर लो। उसके शब्द कोमल थे, मांग नहीं, एक भेंट। लेकिन युनचे ने बस अपना सिर हिलाया। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। आराम करने का समय बाद में मिलेगा। आराम वह कैसे कर सकता था? दुनिया का भार, हर चीज का भार अभी भी उसके कंधों पर दबा हुआ था। इसके बजाय उसने एक सूक्ष्म गति से अपना हाथ उठाया, उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वह उसके बगल में बैठने से पहले बस एक पल के लिए हिचकिचाई। उसके हाथ के एक हल्के से इशारे से उनके बगल में दो आकृतियां प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति ने तुरंत भारी माहौल को तोड़ दिया। गुरु, क्या आप और आपकी पत्नी फिर से हमारे साथ खेलने आए हैं? एक चमकदार, शरारती आवाज हवा में झनकार की तरह गूंजी, जिसमें एक संक्रामक ऊर्जा थी जिसने उनके चारों ओर के अंधेरे को चीर दिया। हाँ ग, उसकी माणिक लाल आंखें शरारत से चमक उठी जब वह उन्हें देखकर मुस्कुराई, उत्साह में थोड़ा उछली। उसके बगल में एक और लड़की खड़ी थी, एक आकृति जो हाँ ग से अजीब तरह से मिलती जुलती थी, लेकिन ज्यादा शांत। उसकी बैंगनी आंखें शांत उम्मीद से भरी थी। तो मगर उन्हें देखकर युनचे की निगाहें नर्म पड़ गईं। इतनी अराजक, इतनी निर्दयी दुनिया में ये दोनों, ये मासूम बच्चों जैसे अस्तित्व अंधेरे से अछूते रहे। और वह इसे ऐसे ही रखना चाहता था। युवा को बाहर ले जाओ और दुनिया की खोज करो, युनचे ने कहा। उसकी आवाज में एक अनोखी कोमलता थी। आकाशीय जहर मोती की दुनिया इस जगह जितनी खूबसूरत नहीं है। उनके लिए हमेशा के लिए उस जगह तक सीमित रहना अच्छा नहीं था। उन्हें दुनिया का अनुभव करने की जरूरत थी, एक ऐसी दुनिया जो युद्ध और कत्लेआम से भरी न हो।
ओह, हागा का चेहरा निराशा से उतर गया। उसका उत्साह अचानक फीका पड़ गया और उसने नाटकीय ढंग से मुंह बनाया। चलो युवा, उसने आह भरी और दूसरी लड़की का हाथ पकड़ लिया। लेकिन फिर, जाने से ठीक पहले, वह एक धूर्त, जानकार मुस्कान के साथ वापस मुड़ी। मालिक शायद अपनी पत्नी के साथ ये दुष्ट काम करना चाहते हैं। और बस ऐसे ही, वह युवा को घसीट कर ले गई, और हंसते हुए वे दूर चले गए। एक पल के लिए, युनचे वहीं बैठा रहा, पूरी तरह से स्तब्ध। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। उसके बगल में, जिया किंगयुए, जो बातचीत के ज्यादातर समय चुप रही थी, अचानक एक हल्की, मधुर हंसी हंसी। हा हा हा। उसकी हल्की और क्षणिक हंसी ने उसके भीतर किसी गहरे को झकझोर दिया। बहुत समय हो गया था जब उसने उसे इस तरह हंसते सुना था। जब से उसने उसे इतना सहज देखा था। युनचे ने उसकी ओर देखा। वह उन दोनों विदा होते हुए लोगों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। और पहली बार, मानो हमेशा के लिए, उसकी छाती पर पड़ा भारी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सोचना कि जियाओ लिंगशी पुनर्जन्म लेने वाली कुलदेवी है। जिया किंगयुए बुदबुदाई, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी क्योंकि वह युनचे की कही हुई हर बात को समझ रही थी। उसने ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी, वह सब कुछ जो उस दिन से घटित हुआ था जब उसने ईश्वरीय लोक छोड़ा था और रसातल में उतरी थी। और अब, आखिरकार उसे सब समझ आ गया। उसे राहत महसूस हुई। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। मूल योजना के अनुसार, हालांकि रास्ता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ तक कि चंद्र देवलोक, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, का पुनर्निर्माण हो गया था। और इस ज्ञान के साथ, इतने लंबे समय से उसके द्वारा ढोए जा रहे भारी बोझ उतरने लगे। काफी समय बाद, उसे लगा जैसे वह खुलकर सांस ले सकती है। और वह लड़की, जिन्युए, युनचे ने अचानक एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में एक चिढ़ाने वाली धार थी। उसे तुम पर सच्चा विश्वास था, तुम्हें पता है। तुम्हारे प्रति उसकी श्रद्धा और निष्ठा कभी कम नहीं हुई। अगर हम देवलोक वापस जाते हैं, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना सुनिश्चित करें। हा हा हा। जिया किंगयुए की आंखें नर्म पड़ गईं। लियान्यू के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह हमेशा से वफादार रही है। उसकी निगाहों में एक उदासी की झलक दिखाई दी, हालांकि उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। इसलिए, उस दिन, मैंने उसे भगा दिया था। उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी, मानो उस फैसले का बोझ अभी भी बना हुआ हो। लेकिन फिर, उसके होठों पर एक हल्की, लगभग उदास मुस्कान आ गई। लेकिन मुझे खुशी है कि अब वह ठीक है। उसका मन अतीत में चला गया, चंद्रदेव सम्राट के रूप में बिताए दिनों में, उन लोगों में जिन्होंने अटूट श्रद्धा से उसका अनुसरण किया था। और अब, उस दुनिया से इतनी दूर, युनचे के पास बैठी, उसने खुद को एक बार फिर उनके बारे में बात करते हुए पाया। बोझ की तरह नहीं, पछतावे की तरह नहीं, बल्कि अनमोल यादों की तरह जो समय के साथ टिकी रहीं। वे साथ बैठे, हर चीज के बारे में बात कर रहे थे, अपने अतीत के बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में, और उन रास्तों के बारे में जिन पर वे अकेले चले थे। कभी कभी, युनचे पहल करता और उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बिताए अपने समय का वर्णन करता, कैसे वह शून्य से उठकर, अपने पंजों से शिखर तक पहुंचा, और रक्त और अवज्ञा के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कभी कभी, जिया किंगयुए अपने अनुभव साझा करती, उसे बताती कि वह अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य में क्या कर रही थी, उसने जो रहस्य उजागर किए थे, वह युद्ध जो उसने चुपचाप लड़े थे, और वह बोझ जो उसने अकेले ही उठाया था। वातावरण शांतिपूर्ण था, जो बाहर की अस्त व्यस्त दुनिया के बिल्कुल विपरीत था। जिया किंगयुए ने अपना आइस फीनिक्स वंश खो देने के बावजूद अपनी बर्फीली सुंदरता बरकरार रखी थी। उसकी उपस्थिति पहले की तरह ही ठंडी और अछूती थी, और फिर भी, जब वह युनचे को देखती, तो उसकी आंखें गर्म हो जाती। ये वही जिया किंगयुए थी जिसे वह जानता था। दूरस्थ चंद्र देव सम्राट नहीं। वह स्त्री नहीं जिसने कभी भाग्य के लिए उससे नाता तोड़ लिया था, बल्कि उसकी किंगयुए, वह सचमुच उसके पास लौट आई थी। उनके बीच एक संक्षिप्त मौन छा गया, फिर वह आखिरकार फिर बोली। तो, अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम ड्रीमवीवर लौटने की योजना बना रही हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर चिंता की एक गहरी लहर थी। आखिरकार, युनचे का कुछ समय पहले अपहरण हो चुका था। उसकी साधना में बहुत वृद्धि हुई थी, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानती थी, वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। अभी नहीं, देवताओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए पर्याप्त नहीं, महायाजकों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं,
रसातल सम्राट का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं, और जितनी देर वह अंतहीन कोहरे में रहा, जोखिम उतना ही बढ़ता गया। अगर वे प्राणी स्वयं अंतहीन कोहरे में कदम रख दें, तो उसकी असली पहचान उजागर होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ, युनचे भी बच नहीं पाएगा। हालांकि युनचे की ताकत अपार थी, उसकी रसातलीय पशु सेना और अनंत कोहरे सागर की अपार शक्ति उसके नियंत्रण में थी, फिर भी वह अजेय नहीं था। हाँ, अनंत कोहरे में उसका सर्वोच्च शासन था, लेकिन जिस क्षण देवताओं ने ये निर्णय लिया कि कोहरा सम्राट को समाप्त करना आवश्यक है, वे अकेले कार्य नहीं करेंगे। अनंत दिव्य रीजेंट के साथ जो हुआ, उसके बाद वे अधिक सतर्क होंगे, अधिक एकजुट। अगली बार यदि देवता वास्तव में उसके विरुद्ध गए, तो वे अकेले नहीं आएंगे, वे मिलकर काम करेंगे। और वह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। केवल एक दिव्य रीजेंट स्तर के देवता के साथ भी उसे पहले ही अपने सभी तुरुप के पत्ते खर्च करने पड़ चुके थे। यदि दो देवता हमला करें, 3 और परिणाम विनाशकारी होंगे, वह ये जोखिम नहीं उठा सकता था। मेरे पास एक योजना है, लेकिन अभी नहीं, युनचे ने आखिरकार शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। मैं पहले और मजबूत बनना चाहता हूँ। वास्तव में उसने पहले ही सभी संभावनाओं पर विचार कर लिया था। इतने कम समय में उसकी साधना में भारी वृद्धि हुई थी, और केवल यही संदेह पैदा करता। लेकिन अगर वह इस बहाने से लौटा कि वह गलती से कोहरे के सम्राट के वश में हो गया था, तो ये पर्याप्त स्पष्टीकरण होगा, कम से कम अभी के लिए। फिर भी जब वह वापस गया, तो उसे पता था कि उसके तथाकथित पिता निश्चित रूप से उसे पहले से कहीं ज्यादा बारीकी से देख रहे होंगे। उसके हर कदम की जांच की जाएगी, साधना के हर अवसर सीमित होंगे, और अगर उसकी प्रगति बहुत संदिग्ध हो गई, तो चीजें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। यहाँ अनंत कोहरे के सागर में उसके पास मजबूत बनने के लिए सबसे अच्छा वातावरण था। यहाँ वह बिना किसी रोक टोक, बिना किसी हस्तक्षेप के साधना कर सकता था। यहाँ वह तैयार हो जाओ। ड्रीमवीवर में युनचे एक बार विश्व भेदक की शक्ति का उपयोग करके अनंत कोहरे में गुप्त रूप से प्रवेश करके और गुप्त रूप से साधना करने के लिए उसके साधना कक्ष में घुसने में सफल रहा था। लेकिन ये केवल इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि स्वप्नहीन दिव्य शासक ने साधना कक्ष के अंदर अपनी आत्मा की छाप कभी नहीं छोड़ी थी, केवल उसके बाहर। उस छोटी सी चूक ने युनचे को अपनी उपस्थिति का पता लगाए बिना स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे दी थी। हालांकि चीजें बदल गई थी। जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से स्वप्नहीन दिव्य शासक अब उसे देखता था, उस तथाकथित स्नेह के साथ जो विकसित हो गया था, युनचे को यकीन था कि अब से वह इतनी आसानी से बच नहीं पाएगा। ड्रीमवीवर लौटने का मतलब था निरंतर निगरानी। उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस, उसका हर कार्य, उसे पहले जैसी आजादी मिलना नामुमकिन था, और इसलिए उसे यहाँ मिले समय का सर्वोत्तम उपयोग करना था। उसकी व्याख्या सुनकर ज़िया किंगयुए ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति विचारमग्न थी, क्योंकि वह चुपचाप उसकी बताई हर बात पर विचार कर रही थी। उसकी कहानी के टुकड़े उसके मन में जुड़ गए, और घटनाओं से कहीं बड़ी एक छवि बन गई। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। युनचे ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, क्योंकि उसकी नाजुक उंगलियां उसकी हथेली पर हल्के से कांप रही थी। उसका चेहरा, जो आमतौर पर इतना शांत रहता है, थोड़ा लाल हो गया। एक पल के लिए वह हिचकिचाई, लेकिन फिर मानो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए उसने आखिरकार बोल ही दिया, तो हम साथ मिलकर साधना क्यों नहीं करते? उसकी आवाज धीमी थी, बहुत धीमी। ये स्पष्ट था कि ये शब्द कहने में उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। युनचे उसे घूरता रहा, क्षण भर के लिए स्तब्ध। साथ मिलकर साधना, जरूर, मैं तो वैसे भी यही करने की योजना बना रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका असली मतलब क्या था। लेकिन तभी उसने गौर किया, वह और भी ज्यादा लाल क्यों हो रही थी। उसके पूछने से पहले ही ज़िया किंगयुए ने दांत पीस लिए, गहरी सांस ली, और फिर, ऐसे नहीं। उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। फिर मानो सारी झिझक दूर करते हुए उसने अपनी नजर उसकी ओर उठाए और फिर से बोली, चलो दोनों मिलकर खेती करते हैं। युनचे का दिमाग खाली हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये शब्द उस पर दिव्य बिजली की तरह गिरे, जिससे वह पल भर के लिए अवाक रह गया। वह बस उसे देखता रहा। ज़िया किंगयुए, जो हमेशा इतनी ठंडी, इतनी दूर, इतनी अछूत थी, अब उसके सामने बैठी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था, उसके हाथ उसके हाथों को पकड़े हुए थे, और वह उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। हाँ,
युनचे की आवाज स्थिर थी, फिर भी उस शांति के नीचे भावनाओं का एक तूफान तेजी से उमड़ रहा था। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकला, उसकी गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, हवा में फैल गई और उनके चारों ओर कई अवरोध बन गए। अलगाव की परत दर परत उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर रही थी। ये साधारण अवरोध नहीं थे, हर एक में उसकी पूरी शक्ति समाई हुई थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी चीज, कोई दिव्य अनुभूति, कोई बाहरी शक्ति इस क्षण में दखल न दे सके। जैसे ही अंतिम परत जमी, एक भारी सन्नाटा छा गया। इस एकांत दुनिया में बस वे दोनों ही थे, युनचे और ज़िया किंग्युए। उनकी नजरें मिलीं, और हालांकि दोनों में से कोई भी नहीं बोला, लेकिन जो होने वाला था उसका भार हवा में गहरा था। पहली बार उनके बीच हमेशा से मौजूद दूरी, भाग्य की वह अदृश्य दीवार जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक अलग रखा था, आखिरकार गायब हो गई थी। समय के साथ नश्वर जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे, कुछ खिले हुए फूलों की तरह खिलेंगे, उनकी सुंदरता अपने चरम पर पहुंचेगी, जबकि अन्य मुरझा जाएंगे, अस्तित्व की अनंत धारा में विलीन हो जाएंगे। और ज़िया किंग्युए के लिए समय के साथ उसकी सुंदरता कम नहीं हुई, उसने उसे और निखारा, नश्वरों की आशा से कहीं परे, साधकों के सपनों से कहीं परे। उस समय देवलोक में उसकी सुंदरता लगभग बेजोड़ थी। सुंदरता के मामले में केवल कियाने यंग, र और शेन शी ही उससे आगे थी। लेकिन अब रसातल में वह उससे भी आगे निकल गई थी। यदि शेन शी देवलोक की निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, तो इस समय ज़िया किंग्युए पूरे रसातल में सबसे लुभावनी अस्तित्व थी। यदि संपूर्ण आदिम अराजकता में नहीं, उसकी सुंदरता अब सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण नहीं थी, वह अलौकिक थी, अपने साथ दिव्यता और भाग्य का भार लिए हुए। ये कहना कि 4 साल पहले उनके अपहरण के बाद से युनचे ने उसके प्रति कोई कामना नहीं रखी थी। Sadi Kisa base Bari Kami Hogi, Usain Rocky T, Kai Bara, Fira B, Hara Siza K Boja Tail Dabe, Apani Larayam, Apana Badala, Zinda Rahane Ki Jado Jahada, Usain Yusa Para Amala Karain Ki Himata Nahim Ki T. Usaki Zimadariom ne Us Sanyamita Rakada, Us Una Babanam Kota Bain K Lai Majabara Kia de Jinhem Usain Bahuda Lamsamaya Se Banda Karake Rakada, Lekina Aba, Usain Pahala Ki T. Ora una si kusi mana jaga, jays hi badam ki akiri parada unak karam ora jamagai, una si ka daria nazuka kenka ki taraha by karagaya, aka dindali si harakata mem, usain usak vastra faradai, usaki harakatam utani hi jengali ora belagama thim jitani aka janavara ko akirakara apani zanjiram se azada karadia gaya ho, zia king u ne viroda nahim kia, unaki ekanta jagaha ki kamala aba mem aba puri taraha se prakata wa anaka sarira. Vedagada, J. Sudatama, Sabase Kamakadara Jetta Se Gari Gai Koi Utkrista Kurti, Vaha Pranada Ki Saksata Murti T, Surfa Rupa Mem Hai Nahim, Valki Jisa Taraha Se Vaha Bina Kisi Hikikakahada K Usak Samain Kari T, Jisa Taraha Se Usain Bina Kisi Hikikakahada K Kudako Usak Havail Karadiada, Una Si Ne Mahasusa Kia Ki Usaka Mana Guma Raha Hai, Usaki Atma Usak Samain K Dersia Ko Dekakara Kampa Rahi Hai, Varsam Se, Vaha Ashuti Rahi T, Eka Divya Sandaria Johamesa Usaki Pahamsiye Se Perda, Lekina Abba, Vaha Usaki T, Ora Isa Pala, Dunia Mem Ora Kucha Nahimda, Lorraine K Lai Koi Yuda Nahimda, Kunati Din K Lai Koi Divya Prani Nahimda, Uthane K Lai Koi Boja Nahimda, Surfa Ve Haida, Jays Hi Usain U Scale Lagaya, Jays Hi Unak Sarira Apasa Mem Gunthi, Zia King U Ne Koi Hikikakahada Nahim Dikai, Usain Bagya Se Bagate Hu Varsam Bateda, Lekina Isa Kasana, Bagya Abba Mayan Nahim Rakadada, Us Abba Babisia Ki Paravaha Nahim T, Nahai Usa Atita Ki Jazain Unhem Akara Diada, Vaha Basa Una CK Satha Rahana Kahati T, Bina Kisi Pachadav K, Kudako Puri Taraha Se Samarpita Karana Kahati T, Isa Kasana, Vaha Kandra Diva Samrata Nahim T, Vaha Sasvata Ratri Ki Divya Putri Nahim T, Vaha Basa Zia King UT, Una Si Ki Patni, Eka Isi Apati Jis Usain Abba Taka Kabi Sax Mana Se Svakara Nahim Kiada, Lekina Abba, Usain Isaka Svagata Kia, Usain Usaka Svagata Kia, Kul Hatham Se, Kul Dilla Se, Fira, Ve Eka Hogai, Eka As Stana Mem Jaham Samaya Ka Astidva Hai Samapta Hogayada, Jaham Sari Gadi, Sarah Paravartana, Sari Vastavakata Eka Sasvata Santi Mem Jamie Way Laga Rahi T, Visala, Kali Sunya Mem Tina Akartium Dikai de Rahi Thim. Eka Gudanam K Bala Bathada, Usaki Mudra Atuda Shrata Se Kathora T,
Usaka sira atana nice juka wada ki usaka matha lagabaga zamana ko chu rahada. Anyadu. Purna prabhutva veil du sinasanam para virajamana. Eka IC visala ora athaha upastiti bikara raha de ki mano unak samain astidva ka tana bana hi kampa raha ho. Yaha Eka IC jagaha ti jaham kanuna lagu nahim hotha. Eka IC jagaha jaham koi bi takata dakala din ki himata nahim karatiti. Ora isa apari vardania setra mem. Rasatala ke bhagya ka faisala ho rahada. Prabhu Rajakumara, Kya Hamem Koher K Samrata Ki Talasa Suru Karani Kahi, Avaza Dimi, Satarka Ora Shradapurnati, Mukhya Pujari, Jo Apara Sakti Ora Prabhava Vail Eka Verta Vyaktitha, Bhavya Sinasana K Samain Gatain Tikadai, Anaka Sira Samarpana Mem Juka Wada, Unak Sabdam K Bara Mem Vaha Tanava de Jazain Pure Rasatala Ko Jakara Liada. Pura Rasatala Sansara Isa Samaya Arajakata Mem Hai. Usaka Svara Sanyamidada. Lekina Sinta Spastati. Agara Hama Is Ace Hai Jari Rahane Denj. Takahara Samrata Ka Prabhava Hara Gujarat Dina K Satha Orabi Mazabuda Hoda Jaga. Agara Hama Jalda Hai Koi Kadama Nahim Uthat. Tahama Kuda Ko Isaac Parinamam Ko Niantrita Karain Mem Asamartha Paj. Usainais Pratyaksa Dekada. Baya ki fusapusa hadam, sabase saktizali pranayam ki bi kampati avazam. Eka saka isvara jira gayada. Isa anoki gatana ne dunia ko hilakara rakadiada. Ora usa yada ke bada. Kahara samrata ki upastiti ora bi barha gaiti. Rasatala para eka asana apada ki taraha mandara rahiti. Mukhya pujari pratiksa kara rahada. Lekina usak samain batha wa. Athaha samrata. Ne turanta koi pratikriya nahimdi. Vaha pain obsidiana sinasana para batha raha, ungalium halke se armaresta para typa kara rahi thim, usaki nigahim rajaniti yayuda se, kahim ziada mahatvaparna kisi siza para tiki thim, eka akarti unak bagala mem kupakapa leti waiti. Jo divya urja ki alaukika kamaka mem nahai waiti eka isi upastiti jazain unak karam oraki puri dunia ko mahatvahina banadiada. Vaha, usak li astidva ki sabase animola siza high, ora isali, apane adinas the ki ora dika vina high, rasatala samrata akirakara bola para. Koi zarurata nahim hai. Usaki avaza gahari. Ijnyakari ora purna adikara se bari ti. Jisamem bahasa ki koi gunjasa nahim ti. Eka bara asima anta divya sasaka ka punarjanma ho jay. Tihamem apane utara mila jaj. Usak sfera mem koi udavalapana nahimda. Rasatala ke batera barhate baya ki koi sinta nahimti. Java vaha samaya aga. Isa tathakathita. Kahara samrata. Ka saka samain a jaga. Ora java isa hoga. To usak anta ki yojana banana bahata asana ho jaga. Adarata ki koi zarurata nahim hai. Mukhya pujari ne apana sira ora bi nice karalia. Ora gambarata se una sabdam ko admasata karalia. Main samaja gaya. Maharaja. Mamala salaja gaya. Kahara samrata ki turanta talasa nahim hogi. Kama se kama. Abita nahim. Lekina tabi. Athaha samrata ki ungalium akanaka thirakana banda ho gaim. Usak mana mem eka vikara ubara. Jazain usaka diana samain kari akarti se hadadia. Akirakara usain apani nazarem hada lim. Halamki usak hava bava aspastadha. Eka ora bada. Usaki avaza mem eka suksma. Kataranaka darati. Kya paterka dragana vansa se koi jivita bakada. Nahim. Prabhu Rajakumara. Gudanam ke bala bathi akarti. Mukhya pujari biga raja. Adiga niskaya ke satha boli. Yaha bahuda haya sambhava hai ki koi bi dragana jivita baka ho. Usaki avaza bari ti. Antimata se bari way. Jabataka hamare saravira gadanasthala para pahamsi. Tabataka athaha dula atani gani ho kuki tiki usain pahale hai sabakucha jenga kakara nasta karadiada. Javana ka koi nasana nahimda. Kavala tabahi. Unhan apani parvata sarnhala ke hara inka ko chanamara. Ora firabi. Unham koi sesa upastiti nahim diki. Eka varama. Fira. Gambira visvasa ke satha. Unhan antima faisala sunaya. Yaha bahuda sambhava hai ki yaha dragana jati ke antaka pratika hai. Eka pala ke lai. Hava mem sanata cha gaya. Fira. Yaha afasosa ki bada hai. Sabta halke fulk. Lagabaga basur se nikale. Mano kisi vastavika kasati ki bhavana ke bajaya kavala sistakara se kahi gai home. Rasatala samrata apane sinasana para thora pitch juka gaya. Usaki abhivyakti bilkula udasinati. Usaki avaza mem na koi dukada. Na koi pachatava. Vaha thandi.
Bhavahina, Alagathalaga Mano eka puri jati ke vanasa ka koi matalaba hi nahimda. Mano draganam ki mertu eka guzarati way hava se ziada mahatvaparna nahimti. Maha krota kupa raha, Usaka sira abibi juka wada, apane svami ke agaladisa ki pradiksa mem. Kamara santada, Samrata ki upasthiti ka baradama gonta rahada, Mano koyadarsia sakti astadva para dabava dala rahi ho. Fira, eka lam varama ke bada. Kya sandesa asima divya samrajya ko beja dia gaya hai. Samrata ki avaza ne sanata tora, unek lahaje mem sahajadati. Firabi eka antarnihita adikara de Jesus yaha spasta ho gaya ki yaha koi sadarana puchatacha nahimti. Maha krota ne turanta uttaradia. Sandesa asima divya samrajya ke divya putra ko beja dia gaya hai. Apaki nirdasanusara, mir prabhu. Usa napana sira ora be nice karalia. Unhem pahale hi nirnaya lalina kahida. Unek jalda hi an ki umida hi. Rasatala samrata ki ora se svikarti ki eka halki si gunagunahada I. Aham. Eka sarala svikarti. Usaki nigahim dura hi rahim. Mano Usaka mana isa batasita se kahim per kisi siza para lagawada. Mano sabakucha. Dragana ka vanasa. Divya samrajyam ka ekatrahona. Usa bisata para basa tukaram ke halain dulain se ziata kucha nahim de jis usain pahale hi jita liada. Rasatala samrata ki nazarem badala gaim. Usaka Diana Yuda ora Vanasa ke Mamalam se Hadakara Kahim Ziata Kimati Siza Para Gaya, Usak Bagala Mem Bathi Mahila Para. Usaki Baba Sunya Abhivyakti Abba Narama Para Gaiti, Lekina Usaki Amkam Ki Garmahata Duka Se Rangi Waiti. Prema ora aparadabada ka misrana, jo usak dila ki gaharai mem eka atuda barabana rahada. Vaha yaham ti. Fira bi vaha nahim ti. Ora kehi usak pasa katani bi sakti ho. Kehi usain katana bi tayaga ora yojanim kayam nabanai home. Vaha us puri taraha seva pasa lane mem nakama rahada. Usak mana. Mem eka nirnaya ne hara pakara li. Bhagya ki visala bisata para usain jatain bi sataranja ke mohar gumeda. Jina samrajyam ko usain hilayada. Jina zindagiyam ko usain niyantrita ora nasta kiyada. Yaha saba, hara eka kriya, isi eka vyakti ke laiti. Rasatala samrata eka lam kasana taka kupa raha, vikaram mem koya raha, fira akirakara vaha vipasa mahakrota ki ora mura. Usaki avaza dimiti. Fira bi usamem eka perna adikara de jo kisi bi inakara ko bardista nahim karadada. Unes sabakucha vasila karana sunasida karo. Sabakucha. Jo unhan linga giana ke sathakia hai. Jays hayi sabda nikale. Biga raja ka sihara kusi se kamaka yutha. Ham. Usaki pratikriya turanta. Santusti se bari waiti. Asima divya samrajya ka sosana karain. Unhem apara kimata kukain ka avasara us bahuda pasandada. Ora usa adisa ko pathara ki lakira manakara. Rasatala samrata ne eka suksma vida ka isarakia. Alakita adisa ko samajat hu. Biga raja ne eka bara fira gahara pranama kia. Fira bina kisi nasana ke palain se gayaba ho gaya. Usak jade hai. Kaksa mem fira se sanata cha gaya. Rasatala samrata bahuda dara taka nahim hila. Fira. Usi komalata ke satha jo usak stara ke prani ke lai lagabaga asvabavika laga rahi ti. Vaha apain bagala mem kari kamosa akarti ki ora mura. Eka orata jo mata ki taraha niskala. Fira bi eka sapain ki taraha kubasarata. Usaka gala runda gaya. Dur. Usain usapani baham mem uthalia. Usays uthaya jays vaha astadva kisa base nazuka siza ho. Vaha manda rosani vale kamari mem age barha. Hara kadama para eka bari, anakaha barada. Java vaha usak visrama stala para pahamsiye. To usain usatani savadani se nice utara ki rasatala ke sasaka ke la yaha jagaha anapayukta laga rahiti. Usak hatha usaki thandi tivaka ko shoot hu ruk rehi. Usaka sparsa bamuskila eka fusapusa hadada. Usaka sihara. Jo amatora para eka aspasta mukata hoda he. Eka pala ke lai tuda gaya. Kasa vaha jaga jati. Kasa vaha us fira se de ka pati. Kasa vaha usaki avaza suna pata. Usaki muskana de ka pata. Fira sabakucha. Hara larai. Be kuna ki hara bumda. Hara yojana. Hara tayaga. Intazara ka hara antahina. Kastadiyaka sala. Yaha saba sarthaka hoga. Usaki ungalium thori kampa rahi thim. Usain lakam shalom taka intazara kiada. Lekina ababi. Usaki kamosi jasa ki tasati. Thora ora intazara karo, Siodi.
Basa Thora Ora. Mosuki Avaza Fusapusahata T. Jo Kamari K Visala Sanate Mem Muscula Se Sunai de Rahiti. Vaha Ekapala K Lai Vahim Kara Raha. Usaki Ungalium Derives Ki Kakata Paratiki Rahim. Mano Terrain Ko Tayara Nahom. Fira. Eka Gahari. Lagabaga Agokara Aha Barat Hu. Usain Durse Deravaza Banda Karalia. Jays Haivaha Kalagaya. Usak Kadama Dime Ora Napa Talakara the. Usaki Abivyakti Aspasta T. Firabi Usaki Amkam Ka Bara Safa Dikai de Rahada. Java Usain Apain Ora Kamari K Batera Usa Kamosa Akarti K Bika Periapta Duri Ban Ali. Tavaha Akanaka Ruka Gaya. Fira, Apana Sira Uthakara, Usain Upera Ananta Athaha Akasa Mem Deka, Ora Bola, Una C, Usaki Avaza Santa T, Fira B Sataha K Nice, Kucha Gahari, Kucha Kahim Ziada Gahari, Antardara T, Apain by Ka Uttaradikari Hon K Nate, Mame Tuma Para Barosa Kurumga, Usaki Ungalium Thori Muri Way Thim, Mano Kisi Adersia Sizako Thama Rahi Home, Mame Tumhari Hara Harakata Para Amkam Mundalumga, Mame Dakala Nahim Dumga, Nahai Tumare Rast Mem Amga, Eka Varama, Fira, Usaka Gale Sabdam Mem Eka Spasta Vazanada, Mame Basa Yahi Mamgata Hum Ki Tuma Ora Mazabuda Bano, Ora Jaba Vaha Samaya Ega, Usaki Amkam Gahari Ho Gaim, Usaki Avaza Dimi, Fusapusahata Se Bamuskila Apera, Buddha Buddhahata Mem Badala Gai, Firabi Isa Kamosa Rasatala Mem, Yaha Bhagya Mem Kudi We Eka Sapatha Ki Taraha Gama Rahiti. Jays main Tumhem Apani Marzi Se Karain Ki Ijazada Di Hai, Tumhem Mujay Mary Kusi Deni Hogi, Usak Sabda, Ve Surfa Us Sunan K Litha, Agara Dusair Devada Yaha Suna Lem, Tave and Dara Taka Hila Jaj, Yaham Taka Ki Mahayayaka Bi Isa Bada Se Anajana Hayam, Durara, Usak Bagala Kastana Akanaka Tuda Gaya, Kali Duraram Sunya Mem Nasam Ki Taraha Fela Gaim, Eka Damagontu Dabava Hava Mem Bara Gaya, Eka Isi Prasina Ora Bayanaka Sakti Ki Mano Samaya Bi Kampa Yutha Ho, Usa Tudi Wade Jagaha Se, Eka Chota, Kala Modi Hava Mem Terata Wa Nice Utara, USA's Eka Isi Sakti Nakala Rahi Ti Jo Athaha, Bayanaka T, Kucha Isa Jo Nosfera Samaja Se Perda, Fira, Modi K. अंधेरे के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, शुद्ध कालेपन में लिपटी। उसका रूप स्पष्ट था, न मनुष्य, न पशु, न जीवित, न मृत। वह एक आत्मा थी, फिर भी इच्छा शक्ति का मात्र अवशेष नहीं। वह कहीं अधिक खतरनाक थी, एक स्वर्गीय खजाने की आत्मा। वह मोसू के सामने मंडराता रहा, उसकी निगाहें समझ से परे थी। आखिरकार बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही फैसला लिया है? उसकी आवाज अनंत काल में गूंजती फुसफुसाहट जैसी थी, अनगिनत आवाजों से भरी हुई, मानो समय के उस पार से बोल रही हो। लेकिन मोसू सिर्फ मुस्कुराया, एक फीकी, जानकार मुस्कान। सही है या गलत, जानने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ समय ही जवाब देगा। उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर अपनी नजरें फिर से आत्मा पर घुमाई। लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, उस दिन मेरे साथ सहयोग करने के लिए शुक्रिया। पहली बार स्वर्गीय खजाने वाली आत्मा चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, आगे कोई सवाल नहीं किया। फिर एक साधारण सिर हिलाकर वह धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई और मोती में वापस चली गई। वह काला मोती कुछ पल के लिए मंडराता रहा, एक प्राचीन अथाह ऊर्जा से स्पंदित। फिर वह वापस दरार वाले स्थान में ऊपर चला गया, और जैसे ही मोती गायब हुआ, उसके आसपास का स्थान अपने आप ठीक हो गया। दरार ऐसे भर गई मानो कभी थी ही नहीं। दुनिया फिर से शांत हो गई। मोसू वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, उसकी निगाहें एक बार फिर ऊपर की खाई पर टिक गईं। फिर उस कमरे की ओर आखिरी नजर डालते हुए जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह मुड़ा और चला गया। जैसे ही ऊर्जा की एक गर्म बहती धारा उसके शरीर में उमड़ी, ज़िया किंग्युए का मन क्षण भर के लिए शून्य हो गया। उसका यिन और उसका यांग आपस में गुंथ गए थे, संतुलन के एक आदर्श चक्र में विलीन हो गए थे। यह अनुभूति अत्यधिक तीव्र थी, बहुत गहरी, बहुत विशाल, शब्दों से परे। वह केवल युनचे को और कसकर पकड़ सकती थी। उसकी नाजुक उंगलियां उसकी पीठ पर दबा रही थी क्योंकि वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी शक्ति कम हो रही थी, जैसे उसकी नसों में एक अदम्य गर्माहट दौड़ रही हो। यह अनुभूति इतनी तीव्र थी कि एक पल के लिए वह बस खुद को छोड़ देना चाहती थी, बस उनके नीचे की कोमल फूलों जैसी जमीन पर शांति से गिर पड़ना चाहती थी। लेकिन फिर अपनी ऊर्जा के संचार पर ध्यान केंद्रित करो। यूचे की आवाज, हालांकि थोड़ी अस्थिर थी, उस धुंध को चीरती हुई आई जिसने क्षण भर के लिए उसके विचारों को ढांक लिया था। फिर भी
वह उसके स्वर में तनाव सुन सकती थी, न केवल उनकी साधना के परिश्रम से, बल्कि किसी और चीज से, उस आंतरिक संघर्ष से जो वह झेल रहा था। यूचे के लिए ये वह क्षण था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वह क्षण जिसके बारे में उसने कभी सोचा था कि वह कभी नहीं आएगा। लेकिन अब इसमें पूरी तरह से लिप्त होने के बजाय उसे अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना था, साधना पर, संतुलन पर, नियंत्रण पर। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें अनियमित थीं, लेकिन उसने खुद को अपना ध्यान पुनर्निर्देशित करने के लिए मजबूर किया, अपने मन को इच्छाओं से हटाकर परिष्कार की ओर वापस खींचा। और फिर उसने इसे महसूस किया, कुछ अजीब, फिर भी जाना पहचाना, कुछ ऐसा जो उसके शरीर से परे सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच गया। नौ अस्तित्व, हर एक अकल्पनीय शक्ति से स्पंदित था, जिसमें ऐसी शक्ति समाहित थी जो उसकी समझ से परे प्रतीत होती थी। यह एहसास उसे लगभग तुरंत ही हुआ। नौ लोक, यह एक विरासत थी, कुछ ऐसा जो ज़िया किंग्युए अनजाने में अपनी द्वय साधना के माध्यम से उसे हस्तांतरित कर रही थी। कुछ ऐसा जो केवल उसका था, कुछ ऐसा जो उसके नौ गहन उत्तम शरीर से उत्पन्न हुआ था। एक स्वर्ग विरोधी उपहार, ऐसा जो युनचे की शक्ति को उससे कहीं अधिक बढ़ा सकता था, जिसे उसने पहले कभी छुआ भी नहीं था। और फिर भी उसने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। नौ लोग तुम्हारे हैं, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक विचार मात्र से उसने उन्हें ज़िया किंग्युए की ओर वापस धकेल दिया, उन्हें उनके सही स्थान पर लौटा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह उनकी प्रकृति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसका मतलब यह नहीं था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। वह जानता था, अगर उसने उन्हें स्वीकार कर लिया, अगर उसने उन्हें अपने में समाहित होने दिया, तो ज़िया किंग्युए उन्हें हमेशा के लिए खो देगी। वह अपनी काया, अपना आधार, अपनी अद्वितीय प्रतिभा खो देगी। और वह ये कुछ ऐसा था जिसकी युनचे कभी अनुमति नहीं देगा। उसका रास्ता उसका अपना था, उसका रास्ता उसका अपना था। और चाहे वह कितनी भी शक्ति की लालसा करे, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन हो, वह कभी उसकी चीज नहीं चुराएगा। उसके साथ केवल युगल साधना ही युनचे के लिए पर्याप्त थी। 9 लोकों को प्राप्त किए बिना भी वह पहले से ही अंतर महसूस कर सकता था। जैसे जैसे उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ती गईं, दुनिया स्वयं ही उसकी प्रतिक्रिया करने लगी। आसपास की गहन ऊर्जा, जो कभी सुस्त थी, अब और भी तेज गति से उसकी ओर दौड़ रही थी, प्रकृति की एक अटूट शक्ति की तरह उसकी ओर खींची जा रही थी। और यह आदिकालीन गहन संदूक के भीतर हो रहा था, एक ऐसा स्थान जो पहले से ही बाहरी दुनिया से अलग थलग था, एक ऐसी जगह जहां गहन ऊर्जा के नियम सीमित थे। अगर यहाँ इतना भारी था, तो बाहर क्या होगा? बस इस विचार से ही उसका खून बेचैनी से उबल पड़ा। फिर भी जैसे ही वह शक्ति के इस नए उभार का आनंद ले रहा था, एक धीमी, थकी हुई आवाज उसके पास फुसफुसाई, लेकिन तुम्हें और मजबूत बनने की जरूरत है। अपनी कमजोर अवस्था में भी, थकान से कांपते हुए भी, ज़िया किंग्युए का मन और हृदय केवल युनचे से भरा हुआ था। उसे और कुछ नहीं चाहिए था, उसे और कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना कि वह इतना मजबूत हो जाए कि उसे फिर कभी उससे अलग न किया जाए। युनचे ने उसकी ओर देखा, उसकी नजर कोमल और अविचल थी। मैं करूंगा। और फिर जैसे ही उसकी उंगलियां उसके कोमल गाल को छू गईं, उसने अपना संकल्प फुसफुसाया, और मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो, साथ रहो। उसकी आवाज में अनंत काल का भार था, जीवन भर का वादा। उन शब्दों को सुनकर उसका दिल और भी नर्म हो गया। एक बार वह उससे दूर चली गई थी, यह मानते हुए कि उसकी रक्षा का यही एकमात्र तरीका है। एक बार उसने खुद को बंद कर लिया था, यह मानते हुए कि नियति ने उन दोनों के लिए पहले ही एक क्रूर अंत लिख दिया है। लेकिन अब, यहाँ, इस क्षण में इन सब बातों का अब कोई महत्व नहीं रहा। जल्द ही उसने थकान को नजरअंदाज कर दिया, अपनी थकान को पीछे छोड़ते हुए, युनचे के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपनी गहन ऊर्जा का संचार किया। जिस क्षण उसकी गहन ऊर्जा संरेखित हुई, उसने महसूस किया, उसकी साधना में नई ऊर्जा का संचार हुआ, जो एक नए जोश के साथ उमड़ रही थी। उसका शरीर, जो कभी परिश्रम से कांप रहा था, अब हल्का और सशक्त महसूस कर रहा था। युनचे उसे चुपचाप देख रहा था, उसकी आंखों में एक कोमल रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके हाथ के एक छोटे से इशारे से गहन ऊर्जा का एक कोमल प्रवाह उसके भीतर उमड़ पड़ा, उसके शरीर की सभी अशुद्धियों को साफ कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह शुद्ध बनी रहे, थकान या बेचैनी से अछूती। फिर सावधानीपूर्वक, लगभग श्रद्धापूर्ण हरकतों के साथ उसने उसे कपड़े पहनाए, उसके वस्त्रों के बहते रेशम को फिर से ताज़ा किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह गर्मजोशी और सुरक्षा में लिपटी रहे। उसी क्षण उसके अपने वस्त्र फिर से उभर आए, उसकी गहन ऊर्जा उसके चारों ओर सहज रूप से बुनने लगी। एक क्षण के लिए उनकी आंखें मिल गईं, और उस क्षण
शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनके बीच समझ का संचार हुआ। इस बार वे साथ साथ खड़े होंगे। फिर बिना पीछे देखे वे एक साथ आगे बढ़े, आदिकालीन गहन संदूक को पीछे छोड़ते हुए। उनकी आकृतियां अंतहीन धूसर रंग में लुप्त हो गईं। कोहरे की दुनिया ने उन्हें घेर लिया था। उसकी ठंडी खामोशी हर तरफ से नीचे की ओर दबाव डाल रही थी। दमनकारी अथाह धूल उनके चारों ओर घूम रही थी, किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रही थी, मानो उनकी उपस्थिति का आभास हो रहा हो। लेकिन दोनों में से किसी ने भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अब दोनों में से कोई भी खुद को और नहीं रोक सकता था। युनचे इसे महसूस कर सकता था, उसके पूरे अस्तित्व में अतृप्त भूख दौड़ रही थी, उसके भीतर की शक्ति मुक्ति के लिए पुकार रही थी। जिस क्षण 9 लोग उसकी आत्मा के संपर्क में आए, हालांकि उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया था, उसके भीतर कुछ गहराई में हलचल मचने लगी थी। उसका शरीर, उसकी कुलदेवी का शरीर, प्रतिक्रिया कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य मुहर टूट गई हो, जिससे कुछ प्राचीन, कुछ सुप्त लेकिन भयानक रूप से विशाल, जागृत होने लगा हो। ज़ेया किंग्युए के 9 लोगों के बिना भी उसके अंदर कुछ कहीं अधिक महान विकसित हो रहा था। उसकी गहन Saram ki gaharai mem, v solitarum bara akasa helane laga, usaki saram ke batera kabi stira rehi naksatra kampa of, anaka divya prakasa timatima rahada, vikara rahada, punarnarmita ho rahada, lekina azaz pahale ki yaha pura ho, apani puri kesamata taka pahumkane se pahale, usurja ki abasiakata ti, antahina, asima urja, ora eyes ora kaham se laya j, sivaya rasatala se, antahina koher ka sagara kampa yutha. Jays hi Usain Adama Gahana Sanduka se Bahara Kadama Raka, Usaka Sarira Zora se Kampa Yutha, Usak Batera se Eka Tivra Buka Umara Parai, Eka Lalasa, Eka Tivra, Adama Abasiakata, Sakti ki, Usaka Sarira Eka Antahina Rasatala ki Tarahada, Eka Athaha Sunya Jo Barain ki Manga Kara Rahada, Us Urja ki Zarurada ti, Ora Ziada Urja ki, Usaki Nazara Upara Yuthi, Koher ko Badat U, Usaki Gahana Urja Javana Mem Garjana Kara Rahiti, Ora Vaha Rasatala ki Hara Siza Nagala Jaga, Lekina Vaha Akila Nahimda, Usak Bagala Mem, Ziaking U Kari T, Usaki Amkam Usi Tivrata Se Jala Rahi Thim, Usaki Samsam Stira Thim, Firabi Adamya Sankalpa Se Bari Way Thim, Usain Bi Eyes Mahasusakia, Jalda Hai, Donam Ne Akasa Mem Hatha Mila Lai, Apani Sakti Ka Sankara Karati Hu. Boomama mama, Una si ki utjaka sakti ne usak now lakam ko projvalita karadiada, ora mano pratikriyasvarupa, ve garjana karati hu javana memagai, sakti ki apani buka membahara ki ora fuda pair. Now alaukika loka dusara ranga ke visala rasatala ke upara tyra rahida, unaki kamakadera kamaka antahina sunya ke bilkala viparita ti. Ve eka alaukika kamaka se jilamila rahida, akasiya pindam ki taraha hava mem latak u. Pratyeka ekalaya ke satha spandita ho raha da jo rasatala mem hi gunja rahiti. Booma mama. Antahina koher ke sagara ki banavada kampa yuthi. Mano unaki pukara ka utara dit u. Athaha dula unaki ora umara parai. Arajaka vanasa ka eka tufana. Sakti ka eka anyantrita unmata jo karam dasam se umara rahada. Garagarahada. Athaha gaharai mem. Kabi gumati dula orabi prakanda hogai, Usaki arajaka prakarti ne sabi bandana toradai, Pura ananta kahara sagara kampa yutha, Lakam kararam mila athaha dula se giragai, Abba raka jaza dusara nahim, Balki eka sutta, damagontu kala, Athaha urja ka eka kala javara eka bindu ki oradora rahada, Una si ki ora, Zia kingayu ki ora, Una si ke lai, Athaha dula sahaja rupa se Usaki ora kinchi kalia rahi ti, Mano Vaha Usak Astidva Kamula Ho, Vaha Ekamatra Akai Jis Vaha Apana Asali Svami Manata Ho, Zia King UK Lai, Vaha Siddhi Agata Dula Ko Avasosita Nahim Kara Sakati T, Lekina Yusa Saki Zarurata Nahim T, Kyanki Una Siki Sakti Ne Us Sutta Karadiada, Jays Hyagata Dula Ne Us Chua, Vaha Rupantarita Ho Gai, Apani Brastata Se Mukta Hokara, Sutta Ora Gahana Urja Mem Paravardita Ho Gai, Eka Isi Sakti Jis Zia King U Sahajata Se Avasosita Kara Sakati T, Ora Isali, Jays Hyagata Dula Una Si Mem Pravahita Way, Sutta Way, Fira Zia King U Mem Pravahita Way, Usaki Sadana Mem Tezi I, Usaka Ganatva Akalpaniada. Atana ki agata janavara, jo isa vikarta loka ke mula se utpana hu jivada, v dura jate samaya kampa of, lakam kararam mila taka, athaha dula ka pravaha narantara jari raha,
Mano ananta koher ke sagara ka eka pura setra pain apamem daha raha ho. Fira. Kraka. 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 Zia king uk sarira para durarum phala gaim jays koi sini midi ki guria tudakara bikara gai ho. Usaki tivaka eka bayanaka, astira kamaka se kamaka rahi ti jabaki usaki gahari nasam vanasa ke kagara para kampa rahi thim. Ora fira. Bu. Usak bagala mem. Una si ka abamandala umara para. Ora vaha ora bi prabala hoda gaya kyanki vaha bi divya guru loka ki simam ko torakara arda karana divya vilapana loka mem pravesa kara gaya. Fira b. Zia king uk viparita, Jiza pani safalata ke bada apani sadana ko sudara karain ki avasiakata ti, una si nahim ruka. Vaha bina ruk. Saba kucha nigalate hu. Tezi se ati urja ko avasosita karata raha. Rambali. Lakam mila lambi athaha dula una ck sarira mem umara rahi ti. Jesus ananta koher ke sagara ki ninva hai kampa yuthi. Una si ko age bahrain ke bada bi urja avasosita karati deka, zia king u. Une damta pisa lai, Usaki amkam mem durasan kalpa kamaka rahada. Bina kisi hikakahada ke. Usain una si ko isara kia ora usa's agraha kia ki vaha usa athaha dula ko gahana urja mem sutta karata. Rehi. Usain jatana ho sake utana avasosita karalia. Firabi vaha janati ti. Apani nai sakti ko puri taraha se samakita karain mem samaya lagega. Lekina tabi. Use eka vikara aya. Apain sarira ko isa adabara ko sahane ke lai majabara karain ke bajaya. Usain sari sutta gahana urja ko unek upera tarat now lakam mem punarnardasita karadia. Rambali. Unek upera ke now loka garjana karati hu jivanta ho of. Mano urja ke prakanda pravaha se jagath home. Kabi alaukika ora parabasi loka. Matra bhutia brahma. Thosa ho gai. Unek rupa spasta. Adika jivanta. Adika vastavika hot gai. Ora fira. Javana urja akara lena laji. Rambali. Una si kam yuma bi faraka yutha jaba usain mahasusa kia ki now loka katani tezi se usa gahana urja ko nagala rehitha. Jisa gadi se unhan sakti ko avasosita kia. Vaha usa gadi se kahim ziada ti jisa gadi se vaha us sutta kara sakadada. Fira b. Sinta karain ke bajaya. Vaha muskaraya. Kyanki usa kasana. Usaki apani sadana eka bara fira umara parai. Orabi ziada sakti ke satha garjana karati hu. Rambali. Pura ananta kahara sagara kampa yutha. Mano isa dunia ki ninva hai dahane valley ho. Athaha dula eka yugra tufana ki taraha chika rahi ti. Unadanam ki ora tezi se barhati ya rahi ti. Mano unek astidva ki ora kinchi kalia rahi ho. Unek upera. Now loka abba sutta gahana urja se labalabada. Kabi paradarsi ora brahmaka. Ve abathosa, murda, kale rasatala mem rajasi donga se tarat hu dikai de rehitha, eka isi kamaka bikara rehitha jo mano andakara kobi kunati de rahi ho. Now lakam mem se pratyeka sakti se spandidada, firabi apani atyadika sakti ke bavajuda, kucha spasta ho gaya. Zia king uk vardamana sadana stara ke karana, loka abba ora vikasita nahim ho sakatha. Fira b. Now lakam mem se pratyeka gahana urja se labalaba bara gayada. Eka asima bandara jo abba kavala usakada. Mujay unhem admasada karain mem kucha samaya lagega. Zia king u ne santa lekina dura visvasa se bari avaza mem kaha. Tumhem abi apani sadana para diana kendrita karana kahi. Jays hi usak sabda nikale. Una si ne senkoka nahim kia. Eka hi samsa mem. Usain urja ko admasada karana jari raka. Usaka pura astitva bina kisi roka toka ke athaha dula ko nagala rahada. Ora. Athaha dula. Eka antahina javara ki taraha. Usamem gusa gai. Usaki sadana ko kataranaka gadi se majabuda kara rahiti. Una si ki gahari nasam mem. Kucha abuda pravagadita ho rahada. Usak batera ka ananta teram vala akasa garaja yutha. Usak anajanata ter kampa rehitha. Buka se ora gahari urja soka rehitha. Unaki kamaka hara samsa ke satha barhati ya rahiti. Ora fira. Paravartana wa. Ter abakavala kagolia pinda nahim rehi. Eka karake. Ve rupantarita hu. Matra teram se. Ve loka banagai. Zia king uk now lakam ki taraha abi puri taraha se vikasita nahim hutha. Lekina unhan pahala kadama yutha liada. Thika vase hi jays jaba usak now loka pahali bara ubertha. Ve alaukika. Paradarsi. Apurnatha. Lekina usak viparita. Ve anajanata the. Ananta loka. Rambali.
Kararam mila ki athaha dula una si ki oradori, eka antahina javera ki lahara ki taraha usak sarira mem samagai, usaka ayatana vismayakarida, eka athaha sakti jo kisibi astidva kokakanakira karain ke li periapta anika hiti. Fira b, una si ne us nagalalia, athaha dula narantara bahati rahi, usapani sakti mem duboti rahi, akirakara, vaha apani sima taka pahamsi agaya, yaham taka ki usaki kaladavi ka sunya sarira b us ora nahim soka saka, ora fira, bu, ora aba, vaha vaham pahamsi agayada, bu mama 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 mama, usaka abamandala bahara ki ora fuda para, sakti ki eka jaya tsunami. Prabhava atana zabaradasta de ki kararam mila taka fali athaha dula lagabaga gayaba ho gai, kyanki usaki urja ki buka ne us nagala liada, kya ho raha hai, kya ho raha hai, bhagavana ista stara, kya apajanate hayam ki kya ho raha hai, gubarai way avazam ka kolahala eka ke bada eka pure desamem garjana ke satha gunja yutha, balain vale koi sadarana loga nahimtha. Vakulina, Rajagarain ora saktizali sadaka the jo ananta koher sagara ke asapasa ke ilakam mem rahatha, unak bika b, bayane unaki atmam ko jakara liya, pure setra mem tanata sikaram rasatala saravira ora sutta bhumi raksaka stabda raha gai, unak sahar para abaspasa sapa jalaka raha de kyanki unhana sambhava ko dekada, abi kucha samaya pahale hayeka. पतित देवता की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दिव्य राज्यों में आतंक की लहरें दौड़ा दी थी और उन्हें अंतहीन कोहरे के सागर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी आज, भले ही वे रसातल से बहुत दूर थे, फिर भी, हालांकि वे सुरक्षित स्थान पर वापस चले गए थे, जमीन कांप रही थी। नहीं, दुनिया खुद कांप रही थी। वे इसे महसूस कर सकते थे। कभी दमनकारी, दमघोटू अथाह धूल जो हमेशा जमीन पर छाए रहती थी, वह कम हो रही थी। हवा पहले से कहीं ज्यादा साफ थी, और फिर भी उन्हें पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग डर के मारे फुसफुसा रहे थे, यह मानते हुए कि ये देवताओं का काम है। कुछ लोग डर से कांप रहे थे, उन्हें यकीन था कि ये दुनिया का अंत है। और कुछ लोगों ने जवाब की उम्मीद में जल्दी से अपने प्रभुओं को रिपोर्ट भेजी। लेकिन कोई भी उनमें से एक भी नहीं इस घटना के असली कारण की कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे ही अथाह धूल अचानक गायब हो गई, अंतहीन कोहरे की चरम गहराइयों से अथाह धूल का एक और भी भयानक ज्वार उमड़ पड़ा। ऐसा लगा जैसे अनंत कोहरा स्वयं घायल हो गया हो, उसने इस अस्वाभाविक बदलाव को महसूस किया हो और प्रतिक्रिया दी हो। और इस तरह कुछ ही क्षणों में अथाह धूल वापस लौट आई, उस अथाह अज्ञात से लुढ़कती हुई, और एक बार फिर अनंत कोहरे के सागर और उसके आसपास के वातावरण को ढक लिया। मानो कुछ हुआ ही न हो, मानो लाखों मील का शून्य कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। लेकिन उस संक्षिप्त क्षणभंगुर क्षण में युनचे पहले ही कार्य कर चुका था। उसकी नव उन्नत दिव्य इंद्रिय बाहर की ओर प्रस्फुटित हुई, और पहली बार उसने अपनी अनुभूति की सीमाओं को सचमुच परखा। उसने जो खोजा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी दिव्य इंद्रिय करोड़ों मील की सीमा तक पहुंच गई थी, और फिर भी, इस स्तर पर भी, वह अभी भी अनंत कोहरे के अंत तक नहीं पहुंच सका था। वह उससे परे फैला हुआ था, और भी दूर, और भी गहरा, और भी अथाह। लेकिन उसकी अनुभूति में मुस्कुराते हुए किसी और चीज ने उसकी आत्मा में सिहरन पैदा कर दी। हाँ, वहां लाखों अथाह जंतु थे, जिनकी साधना दिव्य विलुप्ति क्षेत्र से लेकर दिव्य सीमित क्षेत्र की प्रारंभिक और मध्य अवस्थाओं तक फैली हुई थी। लेकिन उनसे परे और भी थे। उसकी दिव्य इंद्रिय उनसे टकराए, और उसने जो महसूस किया उससे उसका पूरा शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया। संख्या में कम, लेकिन उनकी उपस्थिति अद्भुत थी। वे जंतु जो दिव्य सीमित क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे। किंग यू, तुम्हें इतनी सारी ऊर्जा अवशोषित करने में कितना समय लगेगा? युनचे ने अचानक पूछा। उसकी नजर ज़िया किंग यू पर पड़ी। वह पूरी तरह से स्थिर बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं। वह अपनी शक्ति को मजबूत करने में पूरी तरह से डूबी हुई थी। बिना देखे भी युनचे बता सकता था वह करीब थी, एक और सफलता के करीब। मुझे आधा साल दे दो, ज़िया किंग यू ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसमें ऊर्जा का ज्वार उमड़ रहा था। मैं इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लूं। फिर उसकी आंखें थोड़ी सी खुली, आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। एक बार मैं ये कर लूं, तो दिव्य सीमित क्षेत्र में कदम रखना कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, युनचे ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। यहाँ हमने जो भी हंगामा मचाया है, देवता जरूर कोई कदम उठाएंगे। हम एक जगह नहीं रुक सकते, हमें और गहराई में जाना होगा।
वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में एक ज्ञान भरी चमक थी। चलो अपने लिए एक नया घर ढूंढते हैं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे किसी राजकुमारी की तरह गले लगा लिया। ज़िया किंगयुए की आंखें चौड़ी हो गईं। क्षण भर के लिए वह गहन ऊर्जा के अपने गहरे अवशोषण से बाहर आ गईं। युनचे, तुम क्या हो? और मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी सारी ऊर्जा सोखने में मदद करूं तो बेहतर होगा। युनचे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आंख मारी। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, वह आगे बढ़ गया और उसे सहजता से उठाकर रसातल की गहराइयों में खो गया। दिव्य पुत्र, कृपया निर्णय लें। 3 महीने हो गए हैं। एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, जो तत्परता से भरी थी। वक्ता, एक बुजुर्ग जिसकी साधना दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर थी, अपने सामने खड़े युवक को गौर से देख रहा था। उसके हाव भाव गंभीर थे। उसकी आवाज अधूरती, दिव्य पुत्र, मेम समाजata hum ki hamare sansadana amulya hayam, lekina agara hamare prabhu ko vipasa lane ka zara sabi makahai, tiyaha isake layakahai, eka ora bujar gabola, usaka sfera bi utana hi utsahapranada, usaki sakti pahale vale se kama nahim ti, Danam apane divya samrajya ke stambam ki taraha karitha, unak karamora. Ekatrita akritiam purna mana mem kari thim, ora amkam mem umida ki karana li diana juji ko de ka rahi thim, ve pratiksa kara rahitha, usak utara ki pratiksa mem, tina mahin pahale, unhem eka sandesa milada, eka isa sandesa jo una para divya rahasayaj hatana ki taraha utarada, eka isa sandesa jo atana mahatvaparna de ki manos varga ne svayam bola dia ho, mahaya jakam ne eka lam samaya se chape hu isvara ke rahasya ko ujagara kiada. Eka isa satya jazain unak raja mem kalabali makadi, murta divya pratiniti, ko punarjivita kia yasakatada, unak patita prabhu, vipasa asakata, sabi eka hi samaya mem stabda ora utsahita, apane isvara ko kone ka matalaba de apana stana kona, Isaka matalaba de divya rajyam ki bhavya vyavastha mem mahatvahina ho jana, lekina agara unak prabhu ka punarjanma ho sakatada, agara eka saka isvara vipasa a sakatada, tave eka bara fira apana sira kara sakata, nisandaya, mahaya jakam ne apane patita isvara ko vipasa lane ki kimata ke bear membi batayada, jokima, asafalata ke kai karanada, halamki. Yadi adika divya rasatala patharam ka upayoga ki ajata, tasafalata dara mem ulakanya verdi hodi, apane sa base bear kazane se vida hon para unhem bahuda duka wa, lekina isvara ki tulana mem divya pathara kyada, eka saka isvara kisi bi kajan se kahi madika mulyavana de, fira b, saba kucha ke bavajuda, tina lam mahinam ke bada b, Diana juji apane pita ko punarjivita karain ke li abasiaka kazanam se vida lena ko tayara nahimda. Samasya usak pita ki mertu ki parastitiam memti. Samanyata, Java koi isvara srota ke madhyama se apani divyata pradana karatada. To use siddhi isvara srota ko samahita karain ke li dazana kai gai eka pavitra kajan mem stanantarita yasangrahita ki ajatada. Jis divya balaka ko pradana karain se pahale, unhem eka saks isvara ke rupa mem arohana karain ki anumati di jati ti. Rasatala ke lakam varsam ke daurana, isa prakriya ko koi kunati nahim di gaiti. Kumki sutta bhumi saba para sasana karati ti ora vaham koi yutta nahim wada, isali devatam ne hamesa apane isvara srotam ko siddhi, hatham se age bar hyada, ora isali, unhem sangrahita karain ki kabi abasyakata nahim parai, lekina, kumki unak svami ananta koher mem gaher sama gaitha, isali unak pasa apane raja ke divya bleda ka upayoga karake apane isvara srota ko sangrahita karain kasamaya nahimda. Parinamasvarupa, Isvara srota pahale hi sutta bhumi mem lata kukta, isi karana, sabakucha sutta bhumi devaratea kia gayada, halam ki unamem se kisi ko bi isvara ko punarjivita karain ki rahasyamaya prakriya puri taraha se samaja nahim it, sutta bhumi ke adisa ne badasita ki koi gunjasa nahim chori. Unhan anastana ko age bahrain ke li divya rasatala patharam ki apani lagabaga puri aparti ka anyarota kiada, ora kavala eka hi utarada. Kyanki eka isvara hi sabakucha hi, isvara ke bina, koi divya raja nahim hoga, fira bi pure tina mahin bada bi, Diana juji namanane se inakara karadia, kanapusi pahale hi phalan lajiti, kucha lagam kota yahabi sandaya daki agara isvarya srota asima divya samrajya mem hi rahata, to Diana juji apane pita ko punarjivita karain ke la use karka karain ke bajaya, use apane li istamala karata, or afira, bear by juji, kirpaya koi nirnaya lem.
Akanaka aka Santa Lekina Dura Avaza Gumji, Jazane Tanavaparna Mahala Ko Toradia, Yuva Piri Ne Turanta Jukakara Pranama Kia, Unaki Nigahim Samana Se Baragaim Jaba Aka Yuvaka Age Barha Ora Diana Juji Ko Pranama Kia, Yaha Vyakti Diana Jiongada. Asima Divya Samrajya Ki Puri Yuva Piri Mem Sabase Pratabasali, Vaha Vaha de Jo Diana Juji K Satha Unaki Sutta Bhumi Ki Yatra Parada, Jonga, Mame, Yusa Yuvaka Ko Apane Samain Dekakara, Diana Juji Ka Herdaya Aparadabada Se Baragaya, Sadana Pratibha K Mamal Mem, Diana Jionga Bajorada, Kara Sala Pahale, Vaha Divya, Vilupti Setra K Tizer Stara Para Pahamsiye Kukada, Abba, Vaha Kathi Stara Para Pahamsiye Gayada, Ora Apani Apara Sakti K Bavajuda, Usaki Umra Diana Juji Se Kahim Kamati. Firabi Apani Sari Pratibha K Bavajuda, Vaha Abibi Usak Samain Karada, Usak Faisal Ka Intazara Kara Rahada, Diana Juji Ki Taraha, Diana Jionga K Pasabi Divya Sara Ka Athabam Starada, Halamki, Diana Juji K Viparita, Jo Divya Putra de Ora Jis Mahana Krota Ki Divya Sira Virasata Mem Militi, Diana Jionga Koi Divya Balaka Nahimda, Isake Bavajuda, Usak Herdaya Mem Nata Koi Devesada, Na Hai Koyer Sia, Usak Mana Mem Apane Bear by K Prati Koi Krota de, Kavala Samana, Atuda Nistha K Satha, Usain Bina Kisi Hikakahada K Apana Sira Jukaya Ora Usak Pitch Kaladia. Fira B. Azaz Diana Juji Ka Aparadabada Ora Gahara Hogaya, Aka Lambi Kamosi K Bada, Akirakara Usain Samsa Chori, Usaki Avaza Anaka Se Bari T. Thika Hai, Hama Mahaya Jakam Ki Bada Mana Lenje, Sandesa Biho, Hama Pavitra Bhumi K Lai Prastana Karati Hayam, Anta Mem, Diana Juji Ne Apana Nirnaya Liya, He Prabhu Params Barapita, Hamem Apane Lagam Se Eka Sakana Mili Hai, Ve Kahat Hayam Ki Divya Putra Ora Asima Divya Samrajya K Purakam Ne Pavitra Bhumi Ki Apani Yatra Suru Karadi Hai, Manda Rosani Vale Ola Mem Eka Gahari, Sanyamita Avaza Gumji, Vakta Eka Uvakada, Usaka Sarira Sutta Andakara Mem Lipida Wada, Usaki Upasthiti Atani Bayavaha Tiki Usabhavya Kaksa K Saktizali Loga B Zora Se Samsa Lena Ki Himata Nahim Karapa Rahida, Usaka Andakara Kisi Ora Se Alagada, Isali Nahim Ki Vaha Vinasakarida, Valki Isali Ki Vaha Vinasakari Nahimda, Kamari Mem Maujuda Hara Koi Andakara Ki Gahana Urja Ki Prakrti Ko Janadada. Yaha Jangali, Astirati, Ora Is Kabi Puri Taraha Se Vesa Mem Nahim Kia Yasakadada, Yaham Taka Ki Jo Loga Dasa Hazara Varsam Se Andakara K Marga Para Kala Rahida, Unhembi Satarka Rahana Paradada, Kahim Isa Naho Ki Vaha Athaha Sakti Unak Virada Ho J, Yaha Eka Isi Sakti T Jisaki Hamesa Kimata Kukani Parati T, Lekina Unak Samain Kara Uvaka, Vaha Alagada, Usaka Andakara Paramada, Vaha Ugra Nahimda, Vaha Sangarsa Nahim Kara Rahada, Usain Samarpana Karadia, Vaha Ijnyakari Ora Nisthapravaka Usak Karam Ora Lipida Gaya, Mano Koi Jibita Prani Janata Hoki Usak Svami Ki Avajnya Kabi Nahim Ki Yasakati, Andakara Para Usaka Niantrana Nakavala Abudaparvada, Vaha Bayanaka Vida, Spayam Divya Sasaka Sabi Adika Bayanaka, Jo Abba Sinasana Para Santi Se Batha de Ora Usa Uvaka Ko Eka Aspasta Baba Se Deka Rahada, Eka Lam Kasana Taka, Bhavya Ola Mem Sanata Cha Gaya, Fira, Akirakara, Danyavada, Bhavanga, Divya Sasaka Ne Reporta Svakara Karati Hu Sira Hilaya, Usaki Avaza Gahari Lekina Dimiti, Uvaka Muskaraya, Ora Jays Hivaha Jane K Limura, Usamem Admabasvasa Ki Eka Jalaka Dikaidi, Fira B. Jays Hivaha Dahalija Para Karain Valada, Vaha Akanaka Ruka Gaya, He Prabhu Pita, Agara Mujay Anumati Ho, Kya Main Pucha Sakata Hum Ki Apane Hamare Lagam Ko Asima Divya Samrajya Ki Nigarani Kayam Karain K Lai Kaha Hai, Usaki Avaza Hamesa Ki Taraha Santa Ora Vinamrati, Lekina Usaki Sakani Parada K Nice Jijnyasa Ki Eka Singari Chipiti, Jays Hayi Sabda Nikale, Kamari Ki Hava Mem Eka Halka Sa Badalava Agaya, Divya Pratinidi, Ki Henga, Apane Sinasana Para Thora Pitch Juka Gai, Unaki Nigahim Manaranjana Se Tima Rahi Thim, Apane Bet Ko Unes Savala Puchain Ki Pahala Karati Dekha, Unek Hatham Para Eka Anoki Muskana Agai, Kyanki Mame Samaya and Para Eka Sathi Mitra Ka Svagata Karain K Livaham Maujuda Rahana Kahata Hum, Unhan Itminana Se Java Badia, Unek Spara Mem Eka Nirvavada Nisatata T. Quote?
Ina sabdam ne kamari mem brahma ki lahara doradi. Ekathu bujargamora paharadaram ne ekadusar kokamosa nigaham se deka. Unak sahar para sandaya ora anasatati. Yaham taka ki pana bavanga. Janaka sanyama sayada hai kavi dagamagadada. Nabi apani bonham thori sakora lim. Eka sathi mitra kasvagata hai. Unhan doaraya. Unaki tiki amkam thori sakura gaim. Kazaki. Sayada apa bada kara rehi hayam. Pitaji. Eka pala ke lai. Unak bika sanada cha gaya. Fira. Ki henga ke huntha halke se muragai. Usa kava bava ko samajana namumakina de. Lekina usaki gahari ora janyanaperna nigahim mano samaya ko sarati we laga rahi thim. Mano use pahale se hai pata. हो कि कौन वापस आ रहा है। मुझे लगता है कि अब आप सबको बताने में कोई बुराई नहीं है, दिव्य रीजेंट की हेंग ने इत्मीनान से कहा। उनकी आवाज मधुर लेकिन एक स्पष्ट भार लिए हुए थी। उसकी नजरें कमरे पर घूम गईं, उनकी मुश्किल से दबाई गई जिज्ञासा को महसूस करते हुए। आखिरकार देर सवेर इसका पर्दाफाश तो होगा ही। भव्य कक्ष में उत्सुकता का माहौल गहरा हो गया। हर आकृति थोड़ी सीधी खड़ी हो गई, उनकी सांसें अनजाने में ही अटकी हुई थी। कि हेंग ने फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए सन्नाटे को छाने दिया। उसके अगले शब्द सहज थे लेकिन एक ऐसा भार लिए हुए जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। सब जानते हैं कि दिव्य रीजेंट राहु अनंत कोहरे के सागर में मारे गए थे, है ना? हाँ हाँ, सहमति की एक फुसफुसाहट हॉल में गूंज उठी। आज भी एक सच्चे ईश्वर की मृत्यु इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। इसके बारे में सोचना भी अकल्पनीय था, असंभव था, फिर भी यह घटित हो गया था। उनमें से पान बुवान की आंखों में एक अस्पष्ट सी चमक थी। बेशक उसने इसके बारे में सब कुछ सुन लिया था। अफवाहें नहीं, सच्चाई यह थी कि उसके अपने स्वामी कोहरा सम्राट ने दिव्य शासक का वध कर दिया था। घटना के महीनों बाद भी इसके बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। एक ईश्वर की मृत्यु हो गई थी। कोई भी ईश्वर नहीं, सभी दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली देवता। ऐसा कुछ जो असंभव होना चाहिए था। फिर भी अपने बदले के लिए उसने उन विचारों को गहराई से दबा दिया था और बाकी सभी की तरह एक बाहरी दिखावा बनाए रखा था। हाँ, पान बुवांग ने शांति से उत्तर दिया, बनावटी श्रद्धा से सिर झुकाते हुए। हम सब ने इसके बारे में सुना है। कि हेंग ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर मुस्कुराया। अच्छा, उसने जारी रखा। उसकी आवाज हल्की, लगभग बातचीत जैसी थी, लेकिन उसके अगले शब्दों ने सबके दिलों में एक भयानक लहर दौड़ा दी। हम देवताओं के लिए मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है, पतित देवता को वापस लाने के तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कक्ष में पूर्ण सन्नाटा छा गया। एक पूरी सांस तक कोई नहीं बोला, किसी ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। फिर आकाश में बिजली गिरने की तरह उनके बीच कोलाहल मच गया। असंभव, एक देवता को पुनर्जीवित करना। हे प्रभु दिव्य शासक, क्या आपका मतलब है? ये कैसे हो सकता है? हाँफते हुए, विस्मय में और स्तब्ध फुसफुसाहटें हॉल में भर गईं, यहाँ तक कि सबसे संयमी बुजुर्गों ने अपना संयम खो दिया। पान बुवांग ने भी अपने सारे संयम के बावजूद अपने हृदय को कांपता हुआ महसूस किया। वह जानता था कि देवता नश्वर प्राणियों से कहीं परे हैं, उनकी आत्माएं स्वयं दिव्यता धारण करती हैं। लेकिन एक सच्चे ईश्वर की मृत्यु को उल्टना, यह ऐसा कुछ था जो प्राचीनतम नियमों को भी चुनौती देता था। फिर भी क्यू हेंग केवल मुस्कुराया, उसकी शांत निगाहें उसके सामने स्तब्ध चेहरों पर घूम रही थी। वह इसका आनंद ले रहा था। वह एक ईश्वर था, एक ऐसा प्राणी जो समस्त अस्तित्व के शिखर पर विराजमान था। और उसने अभी अभी उन्हें वह एक बात बताई थी जिसके बारे में कोई भी नश्वर या निम्नतर ईश्वर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, कि देवता मृतकों में से वापस आ सकते हैं। जाहिर है, इसकी भी सीमाएं हैं। दिव्य रीजेंट क्यू हेंग की आवाज शांत रही, लेकिन उनके शब्दों का भार हवा में भारी था, जो उनके सामने स्तब्ध दर्शकों पर दबाव डाल रहा था। किसी देवता को मृत्यु से वापस लाने के लिए उनकी आत्मा का एक अंश, जिसमें अभी भी उनकी दिव्यता समाहित हो, का उपयोग किया जाना चाहिए। उसकी नजरें पूरे कक्ष में घूम गईं, और जैसे जैसे उन्हें एहसास हुआ, उनके भाव सदमे से मौन चिंतन में बदल गए। हम देवता देवत्व की ओर अपने आरोहण पर अपनी आत्मा का एक अंश पवित्र भूमि के आत्मा कक्ष में छोड़ जाते हैं। वह रुका, अपने शब्दों की गंभीरता को समझने के लिए। उस अंश में हमारा दिव्य सार, हमारा सच्चा स्वरूप समाहित है, फिर भी इसका बाहरी दुनिया में हमारे वर्तमान अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। सभा में एक बड़बड़ाहट गूंज उठी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अनगिनत सहस्राब्दियां देवताओं की सेवा में बिताई थी। ये सामान्य ज्ञान नहीं था, और फिर भी ये समझ में आता था।
देवता अस्तित्व के शिखर पर थे, उनकी शक्ति सभी तर्कों को चुनौती देती थी। अगर वे भी बिना किसी निशान के सचमुच नष्ट हो सकते थे, तो दिव्य साम्राज्य इतने लंबे समय तक इतने स्थिर कैसे रह सकते थे? शुद्ध भूमि में हमेशा से रहस्य दबे रहे हैं, ऐसे रहस्य जो दिव्य पुत्रों और पुरखों को भी कभी नहीं बताए गए। क्यू हेंग उनके भावों में विस्मय और बेचैनी के मिश्रण को देखते हुए इत्मीनान से बोलता रहा। संसाधनों की भी आवश्यकता है, एक विशाल अकल्पनीय मात्रा। उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई, जिसमें ईश्वरीय विधान का भार था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुनरुत्थान की देखरेख स्वयं महायाजकों द्वारा की जानी चाहिए। केवल उनकी प्राचीन दिव्य कलाओं के माध्यम से ही पतित ईश्वर का पुनर्जन्म हो सकता है। कक्ष में एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। क्यू हेंग पीछे झुक गया, उसकी उंगलियां उसके सिंहासन के आर्मरेस्ट पर हल्के से टैप कर रही थी। ये केवल एक बार ही हो सकता है। एक ही वाक्य, फिर भी इसमें एक ऐसी अंतिमता थी जिसने उनके दिलों में सिहरन पैदा कर दी। ये प्रक्रिया न तो तुरंत है और न ही इसकी गारंटी है, इसमें दशकों लग सकते हैं। अगर कोई भाग्यशाली रहा, तो 10 साल भी काफी हो सकते हैं। हर शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था, जो वहां मौजूद सभी लोगों के मन में गूंज रहा था। सन्नाटा गहरा गया, फिर अचानक दशकों, किसी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, उनकी आवाज कांप रही थी। एक भी मौका, अगर वे असफल हो गए। एक और बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस रहस्य उद्घाटन की विशालता ने उन सभी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्यू हेंग अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बार फिर बोलते हुए उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कुराहट खेल गई। इसलिए मैंने अपने लोगों को असीम दिव्य साम्राज्य की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा था। उसका लहजा सहज था, मानो सांसारिक मामलों पर चर्चा कर रहा हो, फिर भी उसके शब्दों में अनिवार्यता का भार था। चाहे उनके मन में कितनी भी शंकाएं क्यों न हो, दिव्य पुत्र के हृदय में चाहे कितनी भी झिझक क्यों न हो, वे अपने ईश्वर को पुनर्जीवित करने का चुनाव करेंगे। तारांकन तारांकन, उसकी निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं, उसकी आंखों में मनोरंजन की एक झलक दिखाई दी। और हम देवताओं के लिए, वह थोड़ा आगे झुका, उसकी उपस्थिति दिव्य अविचल दिखाई दे रही थी। बस एक पुराने दोस्त का स्वागत करने की बात है। तो कैली, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल इस समय उथल पुथल में है, लेकिन कृपया थोड़ी देर और रुको। हुआ फूचेन की आवाज स्थिर थी, फिर भी उसमें एक दुर्लभ कोमलता थी जब उसने अपनी बेटी को देखा। वह उसकी आंखों में तूफान देख सकता था, वह बमुश्किल नियंत्रित चिंता, क्रोध और हताशा जो युनचे के गायब होने के बाद से उसे खाए जा रही थी। लेकिन अब आशा की एक किरण थी। जब पुराना राहु पुनर्जीवित होगा, तब हमें आखिरकार सच पता चलेगा कि क्या हुआ था। और जब वह समय आएगा, तो हम कोहरे के सम्राट से निपटने का कोई रास्ता निकाल लेंगे और युनचे को बचा लेंगे। उसके शब्द दृढ़ विश्वास से गूंज रहे थे, मानो उन्हें बोलने मात्र से ही वे हकीकत बन जाएं। हुआ कैली की मुट्ठियां कस गईं, उसका शरीर अनकही भावनाओं से कांप रहा था। इतने लंबे समय से वह बेसहारा, शक्तिहीन होकर अपने नियंत्रण से बाहर हो रही घटनाओं को देख रही थी। वह अकेली नहीं थी जो हिल गई थी। उसके बगल में हुआ किंग भी उतनी ही स्तब्ध थी, उसका हमेशा का तीखा संयम इस रहस्य उद्घाटन पर टूट पड़ा। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी बात सुनी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। यह एक ईश्वर का रहस्य था, ऐसा कुछ जिसके बारे में केवल दिव्य शासक और उच्च पुजारी ही जानते थे। और अब ये सब समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि असीम अंत दिव्य रीजेंट की मृत्यु के बाद किसी भी देवता ने कोई कदम नहीं उठाया, हुआ किंग ने मन ही मन बुड़बुड़ाते हुए कहा। कोई भी देवता मरने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि असीम दिव्य के बाहर राज्य, किसी अन्य दिव्य राज्य के पास आदि ज्वाला पत्थर नहीं है। अगर वे गिर गए, तो उनके पुनरुत्थान का मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। और कोई भी ईश्वर, एक भी नहीं, उनके शाश्वत अस्तित्व को उस युद्ध पर दांव पर नहीं लगाएगा जिसके जीतने का उन्हें यकीन नहीं था। उनके ऊपर एक भारी सन्नाटा छा गया। फिर उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ पिताजी, हुआ कैली ने आखिरकार सांस छोड़ी, उसका सिर स्वीकृति में थोड़ा नीचे झुक गया। हालांकि उसका दिल अभी भी बेचैन था, हालांकि उसकी आत्मा उसे कुछ करने के लिए चिल्ला रही थी। वह जानती थी, उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कहकर हुआ कैली ने अपने पिता और अपनी चाची को अलविदा कहते हुए जाने से पहले गहरा प्रणाम किया। उसके कदम स्थिर थे, फिर भी उसके दिल में एक भारीपन था जिसे वह दूर नहीं कर सकती थी। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इंतजार करना
सबसे मुश्किल काम था। जैसे ही वह अपने कमरे के पास पहुंची, दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। बड़ी बहन। उसके पीछे अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिससे वह रुके। मुड़कर उसने देखा कि एक छोटी सी आकृति उसकी ओर दौड़ रही है। उसकी छोटी बहन हुआ लियांजी। उसकी छोटी बहन की आंखें चिंता से भरी थी। उसकी नाजुक भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थी। क्या बात है, लियांजी? हुआ कैली ने अपनी बहन को देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। हुआ लियांजी एक पल के लिए झिझकी, फिर स्पष्ट बेचैनी के साथ बोली, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी चिंता हर शब्द में साफ झलक रही थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से जब हुआ कैली को अंतहीन कोहरे के सागर से लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी कभी अधिक आत्मा मंद पड़ गई थी, उसका कभी अधिक आत्मविश्वास डगमगा गया था। और हुआ लियांजी ने अपनी छोटी बहन के रूप में हर एक बदलाव को महसूस किया था। उसे अपनी बहन को इस तरह देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे इतना असहाय महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी वह बस यही पूछ सकती थी, और उम्मीद करती थी कि उसकी बहन वह अकेले इस बोझ को नहीं ढो पाएगी। हुआ कैली ने अपनी बहन को एक पल के लिए घूरा, फिर आखिरकार मुस्कुराई। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह ही थी, गर्मजोशी और चमक इतनी कि एक पल के लिए तो मानो असली सी लग रही थी। मैं ठीक हूँ, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, उसके कमरे की रखवाली करने वाली संरचनाएं झिलमिला उठी। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी गड़बड़ न हो, लेकिन अंदर हुआ कैली की मुस्कान फीकी पड़ गई। बड़ी बहन। हुआ कैली को जाते हुए देखकर हुआ लियांजी के हाथ छोटी छोटी मुट्ठियों में बंध गए। वह और कुछ कहना चाहती थी, वह कुछ करना चाहती थी, कुछ भी जिससे उसकी बहन के दर्द को कम किया जा सके। लेकिन अंत में वह बस अपना सिर नीचे करके मुंह फेर सकती थी। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि एक दिन उसकी बहन की मुस्कान अब एक मुखौटा न रहे। जैसे ही हुआ कैली ने अपने कमरे में कदम रखा, सभी बाधाएं और संरचनाएं जीवंत हो उठी, उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया। और उसी पल उसके पैर हार मान ली। उसका शरीर ठंडे फर्श पर गिर पड़ा, और उसके नाजुक हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना चेहरा ढांक लिया। आंसू खामोश, बेकाबू, अंतहीन उसकी आंखों से बह निकले। बारिश की बूंदों की तरह वे बरस पड़े। हर आंसू में दर्द था, हर आंसू में लालसा थी, हर आंसू में चिंता का असहनीय भार था। जैसे ही उसने अपना माथा घुटनों से दबाया, उसके कंधे जोर से कांपने लगे। उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई। बड़े भाई, यूं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी सांसें असमान थी, क्योंकि महीनों से बंद उसकी भावनाएं उमड़ रही थी। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि लोगों के कई चेहरे हो सकते हैं, कई मुखौटे। मुझे लगता है अब मेरे भी कई चेहरे हैं। उसके होंठ कांप रहे थे, और उसके आंसुओं से सने चेहरे पर एक कड़वी, टूटी हुई मुस्कान फैल गई। मैं सबसे अच्छा चेहरा बनाऊंगी, सबसे चमकदार मुस्कान, सबके सामने सबसे मजबूत चेहरा। उसकी सिसकियां भारी होती गईं, उसकी दृष्टि आंसुओं की अंतहीन धारा से धुंधला। मैं बस यही मांगती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। उसके हाथ उसकी छाती से लिपटे हुए थे, मानो किसी ऐसी चीज को थामे हुए हो जो फिसल रही हो। घर लौट जाओ, मेरे पास सुरक्षित लौट आओ। ठीक है। शब्द खामोशी में खो गए। एक फुसफुसाहट, एक प्रार्थना, एक अनंत प्रतीक्षा। शांत कक्ष के अंदर हुआ फूचेन और हुआ किंगयंग गंभीर मौन में बैठे थे। उनके भाव अनकहे दुख से भरे हुए थे। हालांकि वे हुआ कैली के कमरे में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे, उनकी दिव्य इंद्रियां दीवारों के पार फैली हुई थी। हर दर्द भरे आंसू, हर कांपती हुई सिसकियां, हर फुसफुसाती हुई विनती को देख रही थी। ये दृश्य उनके दिलों में किसी तलवार की तरह चुभ गया। एक लंबे क्षण तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। बेबसी का बोझ उन पर दबा हुआ था, घुटन भरा, असहनीय। फिर आखिरकार, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? हुआ किंगयन की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, उसका स्वर धीमी आवाज में फिर भी कांपते हुए। क्या हम लोगों को फिर से अंतहीन कोहरे में नहीं भेज सकते? उसके दोनों हाथ उसकी बगलों में मुट्ठियों में बंध गए। वह बिना लड़े भाग्य को स्वीकार करने वालों में से कभी नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे उन्हें बस इंतजार करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, जबकि उनका कोई प्रिय व्यक्ति कष्ट में है। हुआ फूचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल भारी था। ये रसातल सम्राट की इच्छा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज धीमी थी,
फिर भी उसमें एक निर्विवाद त्याग का भाव था। सच में कोई और रास्ता नहीं है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी अपनी हताशा बमुश्किल ही दब पाई। अथाह सम्राट का आदेश निरंकुश था, अपरिवर्तनीय, अप्रतिबंधित। किसी को भी, यहाँ तक कि उन्हें भी, इसे चुनौती देने का अधिकार नहीं था। और इसलिए जैसे ही उन दोनों ने मौन दुख से भरी एक दूसरे को देखा, उनका एकमात्र विकल्प प्रतीक्षा करना था और आशा करना था। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपने सबसे बड़े डर को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की कि जब तक उन्हें आखिरकार कुछ करने का मौका मिलेगा, बहुत देर हो चुकी होगी। गर्जन, बू, विशाल शून्य में गूंज उठा। गर्जन, बू, संकुचित हो गया। उसका शरीर एक ऐसी शक्ति विकीर्ण कर रहा था जो ऐसे प्रतिद्वंद्वी से बहुत पहले ही पार हो जानी चाहिए थी। ज़ेया किंग्युए के साथ युगल साधना के अनगिनत दौरों के बाद उसकी नींव स्थिर हो गई थी। उसकी आभा प्रथम स्तर के दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शिखर पर दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। भले ही उसने अपनी साधना को और ऊंचा करने के लिए और अधिक अथाह धूल को अवशोषित करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बदला। उसकी प्रगति रुक गई थी। उसके चारों ओर घूम रही अंतहीन अथाह ऊर्जा के बावजूद उसका विकास पूरी तरह से रुक गया था। पहले तो उसने सोचा कि यह एक साधारण अड़चन है, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा, उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वह सारी ऊर्जा जो वह अवशोषित कर रहा था, उसमें से कुछ भी उसके पास नहीं जा रही थी। उसकी गहन शिराएं, उसके भीतर के अनंत तारों वाले लोग, सब कुछ निगल चुकी थी। वे गहन ऊर्जा के हर आखिरी अंश को सोख रही थी, उसे अपने परिवर्तन के लिए संचित कर रही थी। और युनचे, उसे कुछ भी नहीं, ऊर्जा की एक बूंद भी उसकी साधना को मजबूत करने में नहीं गई थी। उसकी गहन शिराएं विकसित हो रही थी, लेकिन किस कीमत पर? और जब परिवर्तन पूरा हो जाएगा तो वे क्या बन जाएंगी, उसे पता नहीं था। अभी युनचे अपनी देवराख अवस्था में खड़ा था। उसका शरीर एक जबरदस्त शक्ति बिखेर रहा था जिसने उसकी युद्ध शक्ति को दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर तक पहुंचा दिया था। इसीलिए उसने अपने से पहले किसी से भी ज्यादा गहराई में जाने का साहस किया था, अनंत कोहरे की असली गहराई में गोता लगाते हुए, एक ऐसी जगह जहां सबसे शक्तिशाली अथाह जीव भी कभी नहीं निकल पाते। करोड़ों मील अंदर, एक ऐसी जगह जहां देवता भी कदम रखने से हिचकिचाएंगे। लेकिन युनचे स्वेच्छा से आया था। यह अपनी ताकत साबित करने के बारे में था, ये जानने के बारे में था कि वह कहाँ खड़ा है। और इसलिए उसने एक ऐसी जगह तय कर ली थी जहां वह आदिकालीन गहन जहाज को स्थापित करेगा। एक ऐसी जगह जहां अथाह गहराई में कोई भी, यहाँ तक कि शुद्ध भूमि भी नहीं पहुंच पाएगा। कभी उसे खोजने के बारे में सोचा भी नहीं था। एक बार जब उसने स्थान सुरक्षित कर लिया, वह बाहर निकल पड़ा। उसने विशेष रूप से दिव्य सीमित क्षेत्र के अंतिम चरण के अथाह जीवों, इस अंधकार में क्षेत्र पर शासन करने वाले राक्षस की खोज की थी। और जब उसे आखिरकार एक मिल गया, उसने उसे दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। उसने अथाह धूल को कमजोर करने के लिए उस पर नियंत्रण नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने जीवन आभा को प्रज्वलित होने दिया, जिससे अथाह वातावरण का दमन उस पर भी उतना ही भारी पड़ने लगा जितना यहाँ हर दूसरे प्राणी पर पड़ता था। वह जानना चाहता था, क्या वह बाहरी कारकों पर निर्भर हुए बिना समान स्तर पर लड़ सकता था? और अब उसे उसका उत्तर मिल गया था, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भी, यहाँ तक कि भगवान ऐश द्वारा उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के साथ भी। यहाँ अनंत कोहरे की सबसे गहरी पहुंच में वह संघर्ष कर रहा था। अथाह दमन इतना प्रबल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अस्तित्व के हर रेशे पर भार पड़ रहा हो।